मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काम सबमिट कर दिया आपने? जी मैंने तो मैम पूरे 12 बजे कर दिया था। दिया, दैट्स गुड। हर चीज का एक टाइटल होता है ना, जी जिस तरह आप एसेज लिखते हैं और टाइटल देते हैं, केस स्टडीज के आपके अपने अपने टाइटल, बिकॉज यू गाइस पिक्ड अप डिफरेंट केस स्टडीज, राइट? सिमिलरली योर प्रोफेशनल वर्क आल्सो हैज टाइटल्स। तो आप एड एजेंसी में तो यू कैन नॉट सबमिट योर वर्क टू द क्लाइंट विदाउट गिविंग द नेम और द टाइटल टू द टीवीसी and duration, etc. You also have to tell which format you'll be using. For example, if you will use 35 film for shooting the TV, whatever you use has an effect on the cost. These are the things that you need to think about, because in professional life, if you're not adding all this information to your work, so it will create a problem for you and for the client. Presentation अच्छी भी नहीं लगती if it is not professionally presented and you are enrolled in a professional program. So it's extremely important कि आप उसमें you add necessary information, right? How much time did it take for you to note down details? मैम आपने जैसे डेडलाइन दी हुई थी द वेरी नेक्स्ट डे, तो फिर वो 2 दिन तो उसी में लग गए थे। जैसे 8th को हमारी क्लास थी एंड यू वर लाइक कि 9th को मुझे सबमिशन चाहिए, तो ऑब्वियसली वी हैड टू डू इट इन दैट टाइम स्लॉट। If you remember, in the last class I mentioned earlier you do the copy part, the better. So because I knew that transcription of the copy will take a bit of time, because you have to replay it again and again to properly hear what somebody is saying or what appears on the screen. So details take time, you know. Frame capturing will not take very long, but formatting will take long, because you have to present your work in a presentable style. Especially in advertising, it should look good. कैसा लगा? Did you do it well? आपकी अभी मैंने देखी तो नहीं है, आपकी सबमिशन पहले मैंने रखी थी midnight तक, then I received an email requesting कि जी आप इसको morning तक extend कर दें. I checked. By then, 21 people had already submitted work. So basically, we were good with time. I think 21 people submitted by midnight. Most had followed the deadline. आपकी असाइनमेंट भी हमारे मेट के बराबर ही होती हैं। Because you get marks for everything. In this particular assignment, you were not creating something, but you were learning how to present things and how to format, your presentation. What else did you learn during this assignment? यही कि अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करना। Ma'am, so basically, learn that how many type of shots we actually can identify, how many probably observation, that how much we observe in a like scene, क्या कुछ मिस किया, और या काफी कुछ What does missing mean? As in like कि हम सीन के अंदर हमने क्या मिस कर दिया। शायद हो सकता है जब आप हमारी असाइनमेंट चेक करें तो हो सकता है वी प्रॉब्ली हैव मिस्ड आउट समथिंग। सो जब प्रॉब्ली फीडबैक आएगा तो हमें पता चलेगा प्रॉब्ली हम ये चीज़ इम्पोर्टेंट शायद भूल गए थे लिखना, यू नो। तो जितना हमें समझ आया तो हमने उतना कर दिया, और बाकी मैम कुछ थी कंफ्यूजन तभी भी असाइनमेंट करते हुए, बट जैसे सीन के अंदर जब मैंने असाइनमेंट सबमिट करा दी उसके बाद मुझे ख्याल आया कि अच्छा ये सीन चल रहा था तो मुझे पूरा लिखना था। अच्छा मुझे डायलॉग ये किस तरह लिखने थे, फिर आई जस्ट सेड कि वंस यू विल सेंड इन द फीडबैक तो फिर आई विल जस्ट रिवाइज इट ताकि मुझे थोड़ा समझ आ जाए, आई कैन गेट अ बेटर पिक्चर अबाउट व्हाट आई हैव डन wrong or probably incomplete, something like that. All right, so this is your assignment, right? Can you see the assignment? Yes, ma'am. Okay. Is this supposed to be your storyboard? No, ma'am, this is the copy. Storyboard is the other file. So why are you adding frames in the copy?
आपने कॉपी को कॉपी की प्रेजेंटेशन डिवाइड की है ना? यू हैव अ लेफ्ट कॉलम एंड अ राइट कॉलम. Yes, ma'am. आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स कैन लुक डिलिशियस और यहाँ पे जी, आपने जी. लिखा है टेक्स्ट रिटन ऑन द स्क्रीन. लेट मी ओपन द असाइनमेंट in Google Classroom. Okay, so assignment 2 has instructions and it has names of persons who have been assigned tasks, and at the end it also has an attachment. Can you see this attachment? Yes, ma'am. I did see this, but you said in the end of this assignment that presenting it is up to you. So I was frame by frame वाला चीज जो है जब ये लिखा हुआ था the kid is speaking, तो वो इसलिए फिर मैंने लिखा कि जो टेक्स्ट नजर आ रहा था और जो टेक्स्ट जो है वो सुनाई दे रहा था, चाहे वो रिपीट हो रहा था, तो that's why I identified separately. Okay, you know के आपने जो यहाँ पे की formatting, this type of formatting will take longer. Is it so? जी मैम टाइम लगा था जी फॉर्मेट के अंदर जी, बिकॉज वो हर चीज जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में था वो डिफरेंट था, और क्योंकि वो एक चीज बिकॉज व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड इट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो लाइक व्हाट आई एम लिसनिंग एंड व्हाट इज रिटन, सो मैं एक ही जगह दोनों चीजें किस तरह लिखूं. सो दिस इज व्हाट आई केम अप कि इस तरह मैं आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, तो फिर मैंने हर चीज अलग अलग कर दी थी. Right. That was it. I mean, I thought कि when you give the presentation looks nice. Formatting ज़ाहिर बड़ी अच्छी लग रही है. So what I'll do, I'll also download the storyboard, or we will go through both of them. Okay. If you remember, I had said in last class that copy-wise, what I exactly need is just the copy. Muhammad Ahmed Hafiz submitted first. All right. So when he submitted, जी मैम his assignment was looking like this, right? जी जी मैम जी बिल्कुल Underneath this, he has provided a key. जी मैम So by looking at key, you know, ST means screen text and POSS means person on screen speaking. IBM Yes, ma'am. brand emphasis या logo, whatever he meant by brand emphasis, he probably meant that IBM developed a logo for this particular campaign, so the logo also appears on the screen. जी मैम He developed his own method of presenting copy. And I have Yes, no ma'am. problem with this type of presentation because he provided the key that says screen text, that says person on screen speaking, right? So जी मैम we know what creative director was thinking when he wrote this copy. If you remember, I had said that client service executive brings the job to the agency and job is handed over to creative director or creative copywriter, creative managers, etc. The managers write the copy, yes मैम and then when copy is finalized, uh, creative department starts developing it into visuals and images into a campaign. Creative process follows the copywriting process. So when you get the copy, आपने दो चीजें present की हैं. So this would be the first one. The first thing that Muhammad Ahmed presented. मैंने इसमें Yes, ma'am. सिर्फ इतनी चेंज की थी कि I suggested to him कि I just need this. So Muhammad Ahmed submitted first. So I said कि this is all I need. Just say on top IBM flashing zebra crossing, which is the title. yes मैम IBM flashing zebra crossing is the title of this case study, not the case study in paper form, but the case study in video form. So on the top, it जी has IBM zebra crossing. It's underneath it says case study video, and after that it says copy, which means the first task by the creative director is completed at this stage. I suggested that on top just write kind of one-liner, yeah, synopsis, right? The copy follows right
after. Okay, this is all I needed copy wise. Because when you bring the job to the agency, जो आप creative director है, creative director actually does not start developing images right away. He conceives the idea first, right? So this is something which is developed at much later stage. Somebody is very organized and he is thinking about text and images simultaneously. ठीक है? Best would be to start here कि आप सिर्फ copy लिख लें. Copy लिखते हुए you are trying to conceive what you will show on screen. Okay? तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना मेंशन किया कि यहाँ पे you would see कि this IBM ad involves kids who will be presenting ideas how to make zebra crossing safer. आपने जब ये पढ़ा तो उसके अंदर आपने देख लिया होगा कि what kids were saying, जो उन्होंने जब उसके साथ एक छोटी सी वर्कशॉप की and then children presented these ideas. और इस पूरी जो भी एक्टिविटी थी उस एक्टिविटी को they developed that activity in the case study video form. ठीक है? तो मैं आपसे ये कही थी कि आपको रियली यू ओनली नीडेड दिस कॉपी वाइज. और उसके बाद जब कॉपी लिख ली क्रिएटिव डायरेक्टर ने तो क्रिएटिव डायरेक्टर फॉरवर्ड द कॉपी टू डिफरेंट डिपार्टमेंट डिपेंडिंग इफ यू नीड द कैंपेन दैट इंक्लूड्स आउटडोर होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बंटिंग्स, TVC etc. तो जो TVC part है that goes to creative director audiovisual या audiovisual department and then they start developing this kind of images. अच्छा, मैंने जो आपको टास्क दिया था अस्मा, आपने ये फाइल जो है have you developed it in वर्ड फाइल या ये वर्ड की PDF है या it's PowerPoint presentation? No ma'am, it's Canva. The best part is कि आप यूज कर रहे हैं frames of equal sizes. मैंने आपसे आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आपकी frames में बड़ी consistency है, right? Storyboard part. मैम वो इसी वजह से थी because the app helped me with placing things in the right place and on the text as well. So yeah, that's why I chose Canva to do this assignment. अच्छा. Would it be possible for you to share the template with all the other students? Yeah, I'm sure. ठीक है? That's not a problem. हाँ, because इससे मैं ये देख रही हूँ कि presentation काफ़ी it's looking very nice और frames को देखना बड़ा आसान है, हालांकि the first two frames look very similar. Okay. मैम वो एक्चुअली when I started with it तो यही वाली एक्चुअली कंफ्यूजन थी कि जब सेम के अंदर, इसलिए मैंने वो स्लैश करके फ्रेम डाल दिया क्योंकि वो ad started and then the text entered. तो वो मुझे चीज एक्सप्लेन करनी थी, तो वो चीज है ना वो मुझे समझ नहीं आई थी. then I just went by, जब मैंने आपसे बात कर ली थी तो फिर मैंने frames डिडक्ट करना शुरू कर दिए थे and then finally I guess 36 frames up. When I initially talked to it was around I guess 47, 49 and then I reduced it to 36. But so, yeah. What I mean कि I can see the difference between the frames. For instance, इसमें आपने you just have the top, right? उसके बाद you are seeing the text that starts appearing on the screen. जी मैम. फिर third में कुछ और text है, fourth में कोई और text है. You know, there are small differences and it's making it look beautiful, नहीं? आपको लग नहीं रहा कि आपका ये storyboard all of a sudden it has become very beautiful? Yes ma'am, it's more easy to understand. अगर जैसे आप कहते हैं ना किसी को दो, so it was easy. And actually one of the seniors actually suggested me to probably Essen. He suggested me to make it in Canva. So yeah, I just had that thought, so I made that in Canva. Okay, good. Yeah. All right. Share it with everyone. राइट. ठीक है मैम, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ. ये जो सेकंड ब्यूटी है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपकी ये इन दो फ्रेम्स में जगह है इन द लास्ट फ्रेम, दैट जो आपकी फॉर्मेटिंग है इट्स वेरी कंसिस्टेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्रेम टू द लास्ट फ्रेम. आप देख रहे हैं फ्लॉलेस फॉर्मेटिंग है फ्रॉम Ma'am, so basically, the Canva has an option of picking a template of storyboard
So I picked this one particularly. कुछ free होते हैं, कुछ आप if you're a member of that particular app तो आपको वो ज़्यादा access दे देते हैं. So it was one of the free template. So ये already placed होते हैं, storyboard और सारा कुछ लिखा होता है, and we just have to like drag and drop our scene. So वो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. I didn't have to like resize or anything. So it actually cut down a lot of my time. जो यूजुअली मुझे अगर वर्ड में किसी और में डालती तो मुझे लग जाता. हाँ, बिकॉज आप वर्ड में करती हैं, इवन पावर पॉइंट में करती हैं, जी तो मैम. यू विल बी डूइंग इट मैनुअली. ठीक है. जी जी तो व्हाट जी. यू आर सेइंग कि दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिड इट ऑटोमेटिकली. मैम मैंने मैन्युअली किया था. अभी मैनुअली देख लेते हैं और आपको आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि जहाँ पे हमने असाइनमेंट पोस्ट की हुई है, यहाँ पे यू सी Yes ma'am. सेमिनार क्लासरूम में ये असाइनमेंट पोस्टेड है. तो Yes ma'am. पोस्ट यहाँ लिंक यहाँ okay मैं भी कर देती हूँ. यहाँ पे आप शेयर करें. यू कैन सी कि ये पब्लिक एरिया है जहाँ, और बाकी ये जो है ये प्राइवेट एरिया है, यू नो. तो जी मैम. असाइनमेंट्स अपनी प्राइवेट एरिया में सबमिट करें एंड सबमिट समथिंग व्हिच इज यूजफुल फॉर एवरीवन. जस्ट पोस्ट इट इन द पब्लिक एरिया. ठीक है. तो आप यहाँ पे पोस्ट कर दें. एसन ताई डिड इट मैनुअली. ठीक है, यही है आपकी एसन. मैम ज़िशान बोल रहा हूँ. मैंने भी मैन्युअली इसी तरह की थी जिस तरह अस्मा ने की हुई है. इसी तरह का लेआउट है मेरा भी. अच्छा, तो आपने फिर ये देखें, ये एहसन ने मैनुअली की. सो व्हाट ही हैज डन, ही हैज डिवाइडेड इट इनटू 4 कॉलम्स. आप देख रहे हैं, पहले कॉलम में उसने लिखा सीन, सेकंड Yes, कॉलम ma'am. में उसने लिखा ऑडियो, थर्ड में उसने लिखा वीडियो, एंड द फोर्थ कॉलम इज सेइंग एनी काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट. हालांकि ये वाला भी ऑडियो का एक कॉलम यहाँ पे मौजूद है, राइट. आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑडियो को उसने एक इधर कॉलम में डाला है, सेकंड कॉलम फ्रॉम लेफ्ट, एंड देन ही हैज द फोर्थ कॉलम दैट हैज मोर इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स, जिसमें वॉइस ओवर भी कह रहा है विद स्लो प्लेइंग, पियानो प्लेइंग एट द बैकग्राउंड. ठीक है. एहसन हैज ट्राइड वेरी हार्ड कि इमेजेस शुड बी ऑफ द सेम साइज. आप देख रहे हैं साइज हियर. तो आपका सेकंड एंड फर्स्ट फ्रेम में बड़ा मामूली सा फर्क नजर आ रहा है. हो सकता है बिकॉज आई हैव नॉट डाउनलोडेड इट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दिस डिफरेंस इज सीन बिकॉज आई एम ओपनिंग इट ऑनलाइन. अगर डाउनलोड कर लूंगी तो शायद ये नहीं होगा. और दूसरा, विजुअल फ्रेम्स में एहसन ने बिटवीन फ्रेम 1 एंड फ्रेम 2 कोई जगह नहीं छोड़ी. आप देख रहे हैं ये नॉन स्टॉप चल रहा है व्हेन आई गो डाउन. जबकि ये जो था ये वाला, ये आप यू क्लियरली सी फ्रेम 1, यू क्लियरली सी फ्रेम 2, और फ्रेम 1 एंड 3 फॉर इंस्टेंस ऊपर नीचे हैं. फ्रेम 4 इज अंडर फ्रेम 2, लेकिन 2 एंड 4 जो है उसको अस्मा डिड नॉट ट्राई कि उनको आपस में जोड़ दे, राइट. यहाँ पे ये आपस में जुड़े हुए हैं. इन फ्रेम्स के बीच में राइट इन द सेंटर देयर शुड बी सम स्पेस, ताकि आप उसको क्लैरिटी के साथ देख सकें, राइट. एहसन, आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रही हूँ? जी मैं सुन. Ma'am, I've shared the link on Google. You shared the link here. Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम. Yes, ma'am. मैम मैंने भी मैनुअली की थी. मैम मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने ना मतलब टर्न इन जब किया था, लेकिन द फाइल वाज रियली हेवी, लाइक 116 MB अराउंड थी. तो आई डोंट नो वो प्रीव्यू होगी कि नहीं. आई हैड दिस टेम्पलेट, लेकिन मैंने फोटोशॉप में उसमें काफी चेंजेस किए थे. तो अगर आप देख लें कि वो डाउनलोड होके आपके पास आ जाती है मेरी फाइल. उसका इंट्रो पेज भी डिजाइन किया था खुद वगैरह, तो उसमें काफी मतलब एड ऑन्स मैंने बहुत ज्यादा किए थे टेम्पलेट के अंदर, तो इस वजह से वो हेवी फाइल बनी है. I mean, good part is कि you have given me the links here. ठीक है. So in any case, ये यहाँ से I will download it from wherever it is. It is in ये आप कह रही हैं ना, यहाँ पे है ये. यस मैम. तो अब ये यहाँ से आपके ये शुरू हो रहे हैं. So आपने you have made it into 2 columns, left column, right column.
ये भी अच्छी है, इट्स नाइस, यू नो, प्रेजेंटेशन बड़ी कलरफुल है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। ये सबसे इजी है, इट्स इजीएस्ट। आप देख रही हैं, वाज देयर एन ऑप्शन टू हैव ओनली वन फ्रेम एट अ टाइम? मैम दिस वाज अ टेम्पलेट आई कुड हैव यूज्ड वन। ये जो टेम्पलेट में था वो 4 फ्रेम्स एक पेज पे थे, 3 भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स। स्टोरी बोर्ड में काफी टेम्पलेट्स आपको ऑप्शंस आती हैं। यहाँ आई सी 4 frames at a time. यस मैम। You know, with my glasses I can still read it. ठीक है? Also, ma'am, the text size can be varied, and it has a lot of options. Probably most of the people have used Canva some point at a time. तो उनको पता होता है कि मैंने font different use किया है, दूसरा font use करो तो वो आप like बड़ा छोटा काफी it has a lot of options. So yeah, it's easier to use. जो अक्टूबर ने काम किया, yes, it's really nice, but it takes a lot of time because individually, doing the whole designing and thing. So it takes a lot of hassle. हाँ, ये है कि मेरे पास जो टेम्पलेट था मैम, वो बिल्कुल काफ़ी चीज़ें, ये होता है कि once you make a template of your choice, जैसे मुझे जो मिला हुआ था उसमें काफ़ी चीज़ें थी, I had to remove it, change the background according to my like taste, या जो भी मेरा assignment थी उसके अंदर blue background था, वो आप एक दफ़ा change कर लो तो it's easier to put things and then go about your assignment. हाँ, Tuba is presenting 2 scenes on 1 page. आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके 2 scenes हैं। Yes ma'am. ये 2 at a time. Exactly, I use Photoshop क्योंकि it totally depends on the choice, क्योंकि मैं already इस designing stuff में हूँ, तो हाँ जी, Canvas is it's more easy for you, yeah. great, हाँ exactly, great for मतलब beginners, या उसमें it's really easy to use। तो मैं already Photoshop, Illustrator वगैरह मतलब I use it, तो इसलिए मैंने फिर इसी में ज़्यादा किया और इसी पे workout किया। Like even the front page I designed it myself, क्योंकि उसका मतलब मुझे था कोई simple नहीं करना and all that, तो इसलिए फिर मैंने इसी पे किया था। फ्रंट पेज इज वेरी नाइस। सिर्फ आपके फ्रंट पेज का ये आप देख रही हैं कि ये आपका स्लाइड साइज इज डिफरेंट यहाँ पे ना, बट इट्स स्टिल वेरी नाइस। आप इसको बाकी सारी की सारी आपकी प्रेजेंटेशन इज ऑफ द सेम साइज। ये जो आपने फ्रेम्स ऑफ इक्वल साइजेस डाले हैं, इस पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, बिकॉज आई थिंक कि every time you will be deciding कि okay, this should be the size of my frame, right? आपको Photoshop में तो manually करना पड़ रहा है, aren't you doing it manually in the Photoshop? Yes मैम, वो exactly मैंने पहले सारा कुछ इसमें वो उसमें Word पे किया था, और फिर जब टेक्स्ट वगैरह भी I copy pasted there उसमें। अच्छा, मेरा आप दोनों से एक सवाल है। आप देख रहे हैं कि in your राइट कॉलम आपने जो टेक्स्ट डाला हुआ है, उसके लिए आपने सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेटिंग यूज की। अस्मा आल्सो यूज्ड like centralized format Yes, for ma'am. putting copy. Yeah. Why did you opt for centralized format? मैम हम लोग जब पहले भी किसी भी वीडियो शूट से पहले भी मतलब when I used to make the storyboards, तो I've been taught ऐसे ही, मतलब I didn't used to make like different for the voice over stuff, और उसमें we used to describe the whole scene उसी एक मतलब उसमें जिसमें अब voice over भी include हो रहा था, and what's happening around the scene वो भी सारा उसी में आ जाता है, उसी description में। Ma'am, can you hear me? जी I can जी। Ma'am, actually I had a little concern, ये जो canvas और ये चीज़ें हैं और frame size या middle में लिखना था या initially, ये चीज़ें हमें अभी पता चल रही हैं, मतलब we did all the work and everything, तो अगर हमें थोड़ा सा idea हो जाता कि हमें कौन सा use करना है app या whatever the Photoshop, Illustrator, तो हम सब भी वो use कर लेते हैं। अब Exactly, ma'am. अब feedback का it is a perfect example for us. अगर यही हमें थोड़ा सा पहले guidance मिल जाती, तो we could have done something similar to it as well. मतलब मैम हमें कुछ भी नहीं पता था कि scene middle में रखना है, PowerPoint पे बनाना है, Word पे बनाना है या किधर बनाना है, तो we just did जो हमें समझ आया उसके accordingly। मतलब मैंने 3-4 अपनी ही जो मेरी friends है उनकी देखी है, तो everyone did something अपनी तरफ से Word पे, तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा that if my work is right or not,
तो अगर मैम अगर थोड़ी सी ब्रीफ पहले मिल जाती बिफोर डूइंग द असाइनमेंट दैट वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल इंस्टेड ऑफ कि असाइनमेंट जब सबमिट हम टर्न इन कर दें एंड देन वी गेट फीडबैक, तो दैट्स अ लिटिल अनफेयर एट आवर पार्ट, क्योंकि हमने ऑब्वियसली पहले नहीं ये चीज़ की हुई, सो वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच लिटरली। हम समझ भी खुद ही रहे थे, हम अपने आप को टीच भी खुद ही कर रहे थे, हम जो भी नई चीजें हैं वो भी खुद ही इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, so that was a little concerning. Okay. Sundar, were you present for the whole duration of last class? Yes ma'am. yes ma'am the अच्छा, entire अगर if you were present for the whole duration of last class, तो हम जब देख रहे थे सैम्पल वीडियोस इन गूगल क्लासरूम, तो आपसे मैंने कहा था कि यहाँ पे लाइब्रेरी में यू सी डिफरेंट वीडियोस, ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक है। और जब मैंने आपसे ये वीडियोस, डिफरेंट वीडियोस जब हमने खोले थे, फॉर इंस्टेंस लेट मी ओपन दिस वीडियो, आई बीन वेरी क्लियर कि आप एक साइज के फ्रेम्स यूज करेंगे। आप देख रही हैं कि ये मैंने आपसे कहा था कि फ्रेम्स जो हैं, टीवी फ्रेम्स डू नॉट कीप ऑन चेंजिंग। मैंने आपसे कहा था कि टीवी फ्रेम इज नॉट स्क्वेयर एट वन पॉइंट एंड रेक्टेंगल एट अनदर पॉइंट। आपसे मैंने कहा था कि आपकी स्क्रीन्स के साइजेस नहीं चेंज होते, तो मैंने गूगल लास्ट क्लास कंडक्ट करते हुए ये बात कही थी कि यूज वन फ्रेम विच represents the proper screen size, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपसे लास्ट टाइम ये भी कहा था कि ये आप लेफ्ट अलाइनमेंट यूज अगर कर लेंगे, तो यहाँ पे ये जो टाइटल लिखा हुआ है आई सेड, ये जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं आई सेड, यहाँ पे आपने कहा, मैंने Ma'am, my frames are exactly the same size. I'm talking about the actual text in it. Frames are obviously, visuals are something else. The written part is something else. मैंने, अच्छा मेरी बात समझने की कोशिश करें। जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस फ्रेम लास्ट टाइम, मैंने आपसे कहा था कि इसके नीचे प्रॉबली थोड़ा सा 1 to 2 mm नीचे राइट SC1 एंड द डिस्क्रिप्शन, एंड देन आई सेड कि उसके फर्दर डाउन यू राइट वॉइस ओवर or whatever else we hear, and underneath I said write music, and at place 4 write the sound effect. अगर आप आपको ये इंस्ट्रक्शंस याद नहीं थी कि मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे जहाँ पे कोको कोला कंटूर डिजिटल कैंपेन लिखा हुआ है, वहाँ पे जस्ट राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट वी सी इन द फ्रेम, और उसके नीचे लिख राइट द वॉइस ओवर और डायलॉग पार्ट और whatever you are hearing. और नंबर 3 पे आई सेड राइट म्यूजिक, नंबर 4 पे आई सेड राइट द साउंड इफेक्ट। तो ये इंस्ट्रक्शंस तो मैंने बड़ी क्लियरली दी थी। आई हैड सेड मैम दैट्स व्हाट शी इज सेइंग, शी इज सेइंग कि ये तो हम सबने बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं, बट शी व्हाट दे आर मेकिंग अ पॉइंट इज कि आप जो बाकी फॉर्मेट्स एंड सॉफ्टवेयर्स का कह रही हैं, अगर वो सारी चीज़ें हमें पहले एज अ स्टैंडर्ड दे देते तो हम सारे वही फॉलो कर लेते इंस्टेड ऑफ मेकिंग आवर ओन। Yes ma'am, because मुझे भी I started off initially with Word, तो मैंने जब कल जो है बात की थी सीनियर से कि I'm facing difficulty, तो then he suggested me कि तुम Canva use कर लो, so yeah. मैंने नहीं कहा कि आप कैनवा यूज करें या आप फोटोशॉप यूज करें। I only compared how you had presented work, and I compared your work with Tuba's work, and you also noticed that Tuba had to do a lot more work than yourself, though she's saying that Canva is for the beginner, Photoshop is for somebody who knows Photoshop very well. मैं आपसे सिर्फ ये कही थी कि just try to see, बहुत neat presentation है। I would suggest कि जब आप अपनी कॉपी लिख रहे होंगे, जो असाइनमेंट थी जब आप लोग कर रहे होंगे, देयर इज एन असाइनमेंट। मैम हमारा कहने का मतलब ये है कि आप इस बार थोड़ा लीनियंट हो जाओ। ऐसा जो आपके जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है फिल्म एंड टीवी में, नॉट इन एडवर्टाइजिंग, इन फिल्म एंड
people use this kind of format. Last time जब हमने क्लास में डिस्कशन की थी तो मैंने आपसे कहा था कि you can present 1, 2 or more frames on a page. जब when I see 4 frames on a page, thankfully I'm looking at it on computer, तो मैं उसका साइज छोटा बड़ा कर सकती हूँ. अगर पेपर पे होता तो I would need powerful glasses to read what I'm seeing under 4 different frames. ऐसे ही है. So I am reading normally in font size 12, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड है. ये अभी तूबा ने भी जो फॉन्ट साइज यूज़ किया हुआ है ये थोड़ा सा छोटा है. आपके पास यहाँ पे इतनी सारी जगह थी. और जो मैं आपसे उस वक्त पूछ रही थी कि आप लोग उसको सेंट्रलाइज्ड लिख रहे हैं, तो नॉर्मली जो है मैं सेंट्रलाइज्ड जो है मुझे पर्सनली आई डोंट ऑप्ट फॉर सेंट्रलाइज्ड, आई ऑप्ट फॉर लेफ्ट अलाइंड. लेफ्ट अलाइंड, और चूंकि अगर आप जस्टिफाइड यूज़ करेंगे, जस्टिफाइड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन जस्टिफाइड में प्रॉब्लम ये है कि एट टाइम्स यू एंड अप विद ओनली 2 वर्ड्स इन अ लाइन, 2-3 वर्ड्स इन अ लाइन. तो मैं जस्टिफाइड इसीलिए ऑप्ट नहीं करती, आई ऑप्ट फॉर लेफ्ट अलाइंड काइंड ऑफ थिंग. तो मैंने आप लोगों को जब वो शो किए थे तो मैंने कहा था कि राइट अंडरनीथ योर फ्रेम, ठीक है. असमा ने अंडरनीथ ही लिखा हुआ है, राइट. बस लेफ्ट अलाइन नहीं है, अंडरनीथ है. तो अगर आप सिर्फ ये टाइटल सीन 1 एस्टेब्लिशिंग शॉट सेंटर में लिख देती और बाकी चीज़ें लेफ्ट पे लिख देती तो दैट वुड हैव बीन फाइन टू. और आपने ये ऑप्ट किया फॉर लाइक एहसन ने शायद मेरी बात अगर पिछली दफ़ा थोड़ी सी अगर मिस कर दी होगी तो दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि आप पावर पॉइंट में अगर जाते तो यू कुड इजीली पुट ओनली 1 फ्रेम ऑन अ पेज और उसके नीचे आप फिर लेफ्ट अलाइन करके ये टेक्स्ट लिख सकते थे. बट राइट अलाइन इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि मैं ये कही थी कि दिस इज़ वेरी नीट. तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी प्रेजेंटेशन. मैम आप रीजन बताएंगे लेफ्ट अलाइन के लिए फ्यूचर के लिए, मतलब व्हाई इज इट्स इम्पोर्टेंट, मतलब इस हमने जो किया उसके निस्बत? ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लेफ्ट अलाइंड ही लिखें, आप राइट अलाइंड भी लिख सकते हैं. Sometimes students are submitting their case studies and even research papers which are centralized, तो वो बहुत visually अच्छे ही नहीं लगते देखने में ना. At times आपकी centralized converse है वो अच्छा लगता है. अब आप ये देखें, आपके फ्रेम में उसने लेफ्ट अलाइन यूज़ किया, मैकडोनल्ड्स मेक योर ओन बर्गर. हालांकि ये इतने थोड़े वर्ड्स हैं कि अगर ये सेंट्रलाइज्ड होता तो दिस विल लुक ब्यूटीफुल इवन इन सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट. क्या ख्याल है आपका? फ्रेम में अगर ये सेंट्रलाइज्ड आ रहा होता तो अच्छा लगता ना, इतना ज्यादा. यस मैम, आई टोटली एग्री. अभी मैंने पूछा फॉर द फ्यूचर कि आइंदा से आपसे मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसने लेफ्ट लाइन यूज किया, हालांकि ये सेंट्रलाइज्ड में भी बहुत अच्छा लगता, बिकॉज दीज आर ओनली 5 वर्ड्स इन योर फ्रेम. ठीक है, 5 वर्ड्स के फ्रेम में यू कैन ऑप्ट फॉर सेंट्रलाइज्ड और लेफ्ट अलाइंड और इवन राइट अलाइंड जो है कॉम्पोजिशन. दिस इज अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, ये जो आपके सीन 1 में लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ टेक्स्ट विच इज सेंट्रलाइज्ड. और उसके बाद ये जो सीन 1 लिखा हुआ है ये बहुत दूर लिखा हुआ है. कैन यू सी? बहुत मैम ये मैंने इसलिए किया था, आपने कहा था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेस जिसमें मैं कर सकती थी, लेकिन दूसरा फिर ये होता है जिसमें थोड़ा टेक्स्ट था वो अगर मैं बड़ा करके लिख देती तो जिसमें थोड़ा सा ज्यादा था वो फिर इक्वल नहीं होना था. इसलिए आई हैड टू मेंटेन अ स्पेसिफिक साइज हर एक के लिए जिसमें सारे टेक्स्ट इक्वली आ जाते. इस वजह से मैंने किया. आप ये देख रही हैं, आई एम मूविंग डाउन टू सी व्हाट यू आर सेइंग. यहाँ पे आपके एंड आई हैव मोर और लेस गॉन थ्रू योर होल प्रेजेंटेशन. ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको? यस मैम. आप देख रही हैं? यस मैम, इट वाज प्रीटी लॉन्ग भी क्योंकि मेरी लाइक 3 minutes 40 seconds की थी वीडियो भी. नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग टूबा. मैं आपसे ये कही थी कि आई लाइक इट, ये अच्छा, दिस इज नाइसली प्रेजेंटेड वर्क. मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब नाउ यू सी कि फ्रॉम फ्रेम 1 टू फ्रेम 50 यू हैव 50 फ्रेम्स. ठीक है, आपके हर जगह पे यहाँ पे दिस स्पेस इज मोर देन हाफ इंच, तकरीबन आधा इंच के करीब तो है ये. अगर हम इसको A4 पे प्रिंट करके देखेंगे तो ये शायद हाफ एन इंच से ज्यादा होगी. YouTube पे मैंने उस दिन आपको दिखाया था कि वो बहुत इसके हार्डली यहाँ तकरीबन यहाँ पे लिखा हुआ था 2-3 mm अंडरनीथ. तो मैं आपसे ये कही थी कि चीज़ों की जो टेक्स्ट की प्लेसमेंट है
अब आपको मैं एक और चीज दिखाती हूँ। ये यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ करती हैं, राइट, ये आपका फ्रेम का जो टॉप है, देख रही हैं? यस मैम, यस मैम। यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हैं और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हैं। डू यू नो के सीन 49 स्ट्रेट लाइन से काफी के खासे करीब है, एंड सीन 50 जो है वो जरा ज्यादा डिस्टेंस पे। कैन यू सी दैट? यस मैम, आई टोटली एग्री। मैंने मतलब अगर टाइम थोड़ा सा और होता तो मैं इसको लाजमी रिवाइज करती, लेकिन हाँ, मैं आपका एरर निकालने की कोशिश नहीं कर रही। नहीं मैम, व्हाट आई एम सेइंग, इट्स रियली हेल्पिंग। हाँ, व्हाट आई एम सेइंग कि ये देखें, यहाँ से यहाँ आपने शायद 3 दफा एंटर किया, राइट, 1 2 3। यहाँ आप जी मैम, ऑटोट्यून्स में ना बस यहाँ पे आपने शायद 4 5 टाइम्स एंटर किया। कैन यू सी? एंटर Yes, एंटर ma'am. एंटर एंटर। जबकि इस वाले में ये प्रॉब्लम नहीं है, आप देख रही हैं। दो असमा ऑप्टेड फॉर सेंट्रलाइज्ड composition is very neat all the way through. यही चीज अगर सानिया या बस ने की होती मैनुअली, ये जो असमा दिखा रही है ना, दिस इज व्हाट आई हैड आस्क्ड, जिसको आप वर्ड में भी कर सकते थे या पावर पॉइंट में भी कर सकते थे। आपकी ये जो क्लासेस मेरे साथ हुई हैं पिछले 2-3 हफ्ते में, आई विल शो यू, आई हैव पोस्टेड देम देयर। आप यू कैन एक्चुअली एक्सेस कि हमने क्लास में क्या डिस्कस किया, यू नो। मैम एक और काम करें, जी जी, काजिम की खोल के देखें जरा, शायद मैं वो देखना चाह रहा हूँ आपके उसके ऊपर क्या व्यूज हैं, क्योंकि मैंने उसकी ये देखी हुई है। मैम, कैन आई आस्क वन लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड? आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि आप जो लेफ्ट अलाइन की बात कर रही हैं, इज इट लाइक कि ये ज्यादा प्रोफेशनल लगता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि अगर फ्यूचर में बनाएं एज कम्पेयर टू अगर हम मिड में यूज करते हैं, लेफ्ट अलाइन इज कंसिडर्ड एज मोर प्रोफेशनल वन? ये मैंने नहीं कहा कि, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि मतलब ऑब्वियसली इट लुक्स बेटर, जैसे आपने वो मैकडॉनल्ड्स का ही मुझे बताया। नहीं, वो मैंने जो मैकडॉनल्ड्स का आपको बताया है ना, मैकडॉनल्ड्स के केस में आई डिड नॉट से कि के लेफ्ट अलाइंड इज बेटर। मैंने आपको मैकडॉनल्ड के केस में सिर्फ इतना कहा था कि they were only 5 words, ठीक है, ऐसे ही है कि they were only 5 words in that particular frame। तो मैंने आपसे कहा था कि जो whoever was doing that case study video opted for left alignment। मैंने आपसे कहा कि मैंने हमारी जो पिछली क्लास थी वो मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पोस्ट कर दी थी। So all the people who had confusion or who were not sure what to do, they could actually refer to this video। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रही थी कि लास्ट क्लास में हमने जो भी आप लोगों ने प्रेजेंट किया था, और एंड whatever instructions I had given, all those instructions were available to you in recorded form। आप देख रहे हैं, ये हमारे लास्ट क्लास का है वीडियो। ये वाली जो असाइनमेंट है अहमद हफीज की, ये तो मैंने बिकॉज he sent it to me on Wednesday last week, which means he sent it to me the same day। तो जब उसने मुझे सेम डे भेजी थी तो मैंने इसको फौरन आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था, एंड आई सेड कि दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर व्हेन यू डू द कॉपीज, जस्ट उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट एंड व्हाट वी हियर। जो बाकी सारी फॉर्म्स हैं, लाइक दिस फॉर्म, दिस फॉर्म, दिस फॉर्म, इवन दिस फॉर्म, ये सारी फॉर्म्स जो हैं वो दे फॉलो, यू नो, इन सारों से पहले है होता है ये जो अहमद हफीज ने किया। हम सबसे पहले यही करेंगे, वी राइट द कॉन्सेप्ट एंड वी राइट व्हाट वी आर हेयरिंग। कॉपी जब लिखी गई तो कॉपी लिखने के बाद यू कैन डू दिस, कॉपी लिखने के बाद यू कैन डू दिस, ये भी और ये भी कॉपी लिखने के बाद होगी, राइट। सो फर्स्ट पार्ट वाज जस्ट दिस मच, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि जस्ट गिव मी द कॉपी, ओके। ये बाकी ये वाली जो फॉर्म है इस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी,
और Yes, ma'am. और बेसिकली जो आपका क्रिएटिव डायरेक्टर है या क्रिएटिव कॉपीराइटर या मैनेजर है वो सिर्फ यही लिखेगा, ही वुड ओनली राइट व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ठीक है, ये करने के बाद he would probably do this. Okay, I want to present my work in a better style. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो स्टाइल की तरफ जा रही हैं। You are trying to make your presentation even better, right? Yeah. Start here and then do better. Okay? यस मैम। मैम थोड़ा सा ये आपसे रिक्वेस्ट थी कि हमें मार्क्स थोड़े बहुत अपने पता चले, ताकि हमें पता चले कि हम कितना कोई जो है काम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि एक लर्निंग कंपोनेंट असाइनमेंट्स होता है तो और उससे ही पता, उसके मार्क्स से ही पता चलेगा कि हम मतलब कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, और मतलब कि कितना इफेक्टिव साबित हो रहा है ये हमारे लिए ऑनलाइन अच्छा, क्लासेस। मोहम्मद अहमद हफीज, आई मार्क्ड द असाइनमेंट्स एंड आई मार्क्ड योर वर्क। जो असाइनमेंट्स वगैरह थी, केस स्टडी का जो रिटन फॉर्म था, पेपर आप लोगों ने जो सबमिट किया, तो वो मैंने ठीक है आप मैम। लोगों को साथ साथ मार्क किया था। आई मार्क्ड एंड आई ऑल्सो पोस्टेड मार्क्स इन गूगल क्लासरूम। मैंने आपसे कहा था कि आपकी मार्किंग आती है इन योर प्राइवेट स्पेस। मार्किंग तो मैंने पब्लिक स्पेस में नहीं पोस्ट की भी ना। And अच्छा मैम। I keep on requesting all of you कि please do not email your assignments to me, because उसमें problem ये होगी कि I receive too many emails. So I can't keep searching emails. आप देखें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, और इसके बीच में अभी वो मेरे MSTFT के स्टूडेंट्स, women in media के स्टूडेंट्स and many other people from office admin etc, they will be sending me emails, which means कि if you send me work via email, I will probably lose your work, right? And if you submit in Google Classroom, there is no way that I lose your work, because when I click, I find all work here, right? यहाँ से तो आपका काम, ये आपकी private spaces हैं. I post your marks here. If you click any of your past assignment, you will see your marks. सॉरी टू इंटरप्ट मैम, फैसल बात कर रहा हूँ। आपने अभी मिड टर्म तो मार्क नहीं किया ना? मिड टर्म के मार्क्स मैंने आपको नहीं भेजे अभी तक, but you were definitely marked on your first assignment and you were told कि you improve your first assignment, you get better marks in your midterm. ठीक है? I had given you a number of chances कि share your marketing contacts, share your objectives etc. मैंने आपसे क्लास में बार बार कहती रही थी कि please write something and share with me, because if you would share, I would tell you exactly where you stand at that point. For instance, if I was saying, okay, it seems you'll get C for this assignment. ठीक है? So by the time आप deadline पे जब submit करते हैं, you have done your best, तो आप C से improve होके B पे चले गए ना by the time you are finally submitting it. ठीक है? तो मैंने आप लोगों की वो पोस्ट की एंड आई जस्ट पोस्टेड वन कमेंट कि पीपल हैड परफॉर्म्ड बेटर व्हेन दे वर प्रेजेंटिंग, लेकिन अभी तक प्रेजेंटेशंस कंप्लीट नहीं हुई हैं। अब आपको ये अस्मा का ये नज़र आ रहा है, इस पे मैं आपको सिर्फ एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूँगी आप लोगों से। ये फ्रेम 1 और 2 के नीचे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, फ्रेम 1 के नीचे फ्रेम 1 से रेलेवेंट टेक्स्ट लिखा है, फ्रेम 2 के नीचे फ्रेम 2 से रेलेवेंट टेक्स्ट लिखा है। अगर मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी जगह होती ना कि फ्रेम 1 का टेक्स्ट इज रिटन वेरी क्लोज टू फ्रेम 3, ऐसा ही है आसमान? यस मैम। हाँ, तो मैं आई वुड हैव प्रीफर्ड कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिलती कि फ्रेम 1 and 2 ख़त्म हो गए, फिर देयर इज स्पेस और जो है, और फिर देन आई एम लुकिंग एट फ्रेम 3 and 4. डिस्क्रिप्शन ज़्यादा हो रही थी, that's the only thing. मुझे I know what you're trying to say, that we need a break. This is very well presented. ये बड़ा नीट लग रहा है, I said it's looking really neat. ठीक है? इट्स लुकिंग रियली नीट। ये चीज़ मैंने आपको सबसे पहले कही थी। तो उसके बाद जब एक पेज ख़त्म होता है तो देन वी सी दिस ब्लैक स्पेस इन द मिडल। देख रही हैं आप ये?
ठीक है, तो मैं उसकी वजह से प्रेजेंटेशन इज इवन बेटर बिकॉज आपका एक फ्रेम खत्म होता है तो देन वी लुक एट द नेक्स्ट। एक पेज आपका हमने पूरा देख लिया, उसके बाद वी मूव गो टू नेक्स्ट पेज एंड देन लुक एट फोर मोर फ्रेम्स। वो जो एसन वाले में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि वो फ्रेम्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे एंड फ्रेम 1 2 3 4 वो सब एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे। रीडेबिलिटी वुड बी बेटर, यू नो, विजुअल लुक वुड बी बेटर इफ आई सी सम वाइट स्पेस इन द मिडल। अहमद बात करो। जी अहमद हफीज मैम बाकी सबको भी फीडबैक दे दें असाइनमेंट का। मैम वो पूछना ये था कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन होता है उसके लिए अगर हम अगर ज्यादा लॉन्ग वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करें तो वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, मतलब कि जितनी डिटेल्स को हम कैप्चर करके उसको राइट कर रहे हैं, मतलब कि इसकी तो कोई ये तो नहीं है कि ज्यादा लंबा नहीं लिखना डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन को। डिस्क्रिप्शन का तो वर्ड लिमिटेशन इज नॉट एन इशू बट इट शुड रियली बी कंसाइज। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ अदनान हाशिम। यस मैम। एहसन ताहिर। यस मैम। हेना। हेलेना यस मैम। अरसल। यस मैम। अस्मा। Yes, ma'am. फैसल। प्रेजेंट मैम। हसीब। All right, Hasib is not here. Ahmed Hafiz. प्रेजेंट मैम। Ammar. यस मैम यस। Kazim. मैम मैं प्रेजेंट हूँ। जी काजिम लगा दिया प्रेजेंट। ओके, आई सजेस्ट कि कम से कम हैंगआउट में हैव अ नेम दैट लुक्स डिफरेंट। वहाँ पे मुझे आई कैन सी मोहम्मद and it's hard to understand कि who is Ahmed Hafiz, who is Ammar Zahir and who is Kazim, Norez and Zishan। प्रोफाइल पिक्चर्स लगा लेते हैं। प्रोफाइल पिक्चर्स लगा लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इट वुड बी इजी फॉर एवरी। ठीक है मैम। जी जी। मुजना। यस मैम आई एम प्रेजेंट। रुबाब। प्रेजेंट मैम। ओके। सानिया। प्रेजेंट मैम। सऊद। प्रेजेंट मैम। शहीर। प्रेजेंट मैम। शारफा। शुमाइला। प्रेजेंट मैम। सुंदस। प्रेजेंट। नवाजिश। प्रेजेंट मैम। मैम हसीब आ गया। अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम जी। तूबा एंड जहरा। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। जमरा। शारफा एंड मदीहा। आई डू नॉट सी। अच्छा, मदीहा ने ज्वाइन किया था लेकिन और उसने ज्वाइन किया था आफ्टर अबाउट एन आवर 58 मिनट्स पे। और काफ़ी सारे और लोग हैं जो 58 मिनट्स पे। सबके आप देख रही हैं कि सबके टाइम्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, हु ज्वाइंड एट व्हाट टाइम। ठीक है, अभी मैंने जो आपसे 3 डिफरेंट सैम्पल्स डिस्कस किए उसमें एक अस्मा का काम था, अहमद हफीज़ का काम था, एहसन ताहिर का काम था एंड ऑल्सो Tuba's work. So I had opened actually 4 different types of work और मैंने आपको बताया कि if you present like this how it looks और आपसे हमने उनको कंपेयर भी किया कि नीटनेस कहाँ पे ज़्यादा है, प्रेजेंटेशन कहाँ पे ज़्यादा बेहतर लग रही है। So I think कि by looking at 4 different samples you kind of know how to present your work in future. आप लोगों की जो अभी कंसर्न है कि आपकी फॉर्मेटिंग इतनी अच्छी नहीं लगेगी if you were really putting just 1 frame on a page in Word file or 2 frames on a page in Word file, even that would have been fine by me. ठीक है, तो बस मैं सिर्फ यही देखना चाह रही थी कि वो फ्रेम के साइजेस कंसिस्टेंट हो और एटलीस्ट यू आर गिविंग द टेक्स्ट इन द स्टाइल दैट आई हैव सजेस्टेड। टूबा का अलबत्ता एक क्वेश्चन था जिसमें शी सेड कि somebody told her to write everything in one place. मैम इट्स माई फर्स्ट टाइम कि मैंने इस तरह करके डिज़ाइन किया। उससे पहले इतना काम मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन यूजुअली मैं उसी तरह डिस्क्राइब कर देती थी। मतलब अलग अलग कॉलम्स नहीं ऐसे किए मैंने कभी। तो
एक्सेप्ट हो जा मतलब एक्सेप्टेबल था और मैंने मतलब वैसे भी देखे Tuba, तो मैं listen. Different teachers give you different requirements. Is it so? यस मैम ट्रू जिस टीचर ने जो असाइनमेंट दी है, the best would be to follow the requirement given by that particular teacher. मैम आई रेड योर पॉइंट्स और आपने जो जो पॉइंट्स उसमें कवर करने को बोले थे वो आई कवर्ड दैट इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम श्योर कि आपने ज़रूर किया होगा। मैंने अभी आपकी डिस्क्रिप्शंस ना तो आपकी पढ़ी हैं ना मैंने आपकी डिस्क्रिप्शंस अस्मा की पढ़ी हैं। I haven't read any of the descriptions in any of the 4 samples that we discussed today. The only thing that I had read was the copy part written by Ahmed Hafiz, right? Yes. हाँ, I said that he submitted his copy on Wednesday last week. When he submitted it, I read it then and there, and then I decided to post it. क्योंकि मैंने उसमें आप लोगों को suggestions दी थी on Ahmed Hafiz's copy. I gave suggestions which related to every student in class. कि please present your copy in this style. I said just on the top give the title of the case study video. Underneath write copy and one-liner sort of thing. Just say what is the key idea behind this case study video, and underneath write only the copy part. ठीक है, वो मैंने अहमद हफीज़ का जब सबसे शेयर किया था तो मैंने उस वक्त कहा था कि गाइस दिस इज़ ऑल आई नीड व्हेन आई से के जी राइट कॉपी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कह रही हूँ, और देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। फॉर इंस्टेंस, अगर आप फीचर फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रहे होते, आप टेलीविज़न सीरियल का, सीरीज़ का, सोप का स्क्रिप्ट लिख रहे होते, तो when you are writing your script for the first time, you will probably write everything that you are saying that you've been told to write all these things in one place. If you understand what I'm trying to say, कि डॉक्यूमेंट्री का जो स्क्रिप्ट राइटर है, टीवी प्ले का जो स्क्रिप्ट राइटर है, फीचर फिल्म का जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो मैक्सिमम आइडियाज एक ही जगह पे थ्रो कर रहा होगा, राइट? Maximum ideas, he'll be throwing all those different ideas in one place. I'll try showing you something from, if I can. मैम फिर तो एसन का सही हुआ ना, उसने पार्टीशन की है, तो दैट्स व्हाट यू आर सेइंग कि उस तरह होना चाहिए, राइट? नहीं, मैंने वो आपसे नहीं मांगा, मैंने सिर्फ कॉपी मांगी थी, और एसन ने जो प्रेजेंट किया है। अच्छा आप मैम आप कॉपी की बात कर रही हैं, तो मैंने अहमद वाला इसलिए फॉलो नहीं किया क्योंकि जब मैंने ही उसके दो दिन के बाद जब मैंने पोस्ट किया था, तो जो मैंने जो फॉर्मेट पे किया था उस पे भी आपने मतलब कमेंट किया था कि लुक्स गुड, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया उसको अहमद वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। इट्स परफेक्टली फाइन। मैंने अहमद वाला आप लोगों से इस वजह से शेयर किया था बिकॉज some people were confused, some people were asking for samples, and I shared his work with you to show you what I was looking for. I said this is all I need, just write the copy. ठीक है, मैंने अभी आपको अस्मा की कॉपी प्रेजेंटेशन दिखाई, and I said कि this will happen after you have completed what Ahmed Hafiz did. ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि एवरीथिंग फॉलोज कॉपी राइटिंग। जब आपने कॉपी राइटिंग, अच्छा आप ये देख रहे हैं, ये देखें, ये जो आप अभी बात कर रही थी, नाउ एवरीथिंग इज रिटन इन वन प्लेस, लेकिन इसमें भी ये भी थोड़ा सा एडवांस स्टेज है। दिस इज नॉट द इनिशियल आइडिया व्हेन यू आर राइटिंग स्टोरी फॉर अ प्ले और स्टोरी फॉर अ फीचर फिल्म। ये थोड़ा सा एडवांस्ड इस वजह से है बिकॉज ऑन टॉप इट सेज सीन 1, and then in the middle it tells you the name of the location, and on the other side it shows you if it is an exterior day or night scene. ठीक है, exterior or interior, day or night scene. और उसके नीचे ये जो पहली 5 lines, the first 5 lines give you the screenplay descriptions of scenes, what is happening here. People are walking, people are doing different kind of exercises, kids are playing, परिंदों और मछलियों को दाना डालने के मनाजिर। उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि एक बूढ़ा आदमी हाँफता कांपता चहलकदमी कर रहा है। ये जो आपसे जो हाईलाइटेड पार्ट है, दिस हाईलाइटेड पार्ट इज ओनली गिविंग यू विजुअल। आप देख रहे हैं,
इस highlighted part में there is nothing that you can call voice. Is there anything that you can say it sounds like voice? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, ये this highlighted part is only giving you descriptions of visual. और उसके आगे लिखा हुआ है इसके जहन में मुख्तलिफ आवाज़ें गूंज रही हैं, but how would you see आवाज़ें गूंजती हुई? You don't see them. यहाँ पे आपने ये देखा कि between स्क्रीन प्ले पार्ट एंड द वॉइस पार्ट फ़र्क है. यहाँ the assignment starts 1 inch from right, and what you are hearing is more than an inch. It's about 2 inches from the right hand side. So when you look at this kind of thing, you will immediately see that images are written here and voices are written here. Do you know what I mean? तो जैसे ही the minute you look at something like this, आप right away देख लेंगे कि अच्छा this is what I'm seeing, this is what I'm hearing. ये जो formatting difference है, it makes it easy for you to understand what you are seeing and what you are hearing. आप देख रहे हैं? अब if you talk about Pakistan television standard script writing format, तो PTV पेज को बीच में से fold कर लेगा, right? They will fold it means they will create 2 columns. In one column they will continue writing the visual part, and in the second column they will continue writing the voice part. Ahsan Tahir was going a step further ahead. He created 4 columns. It would be easier to see 4 columns in landscape format. आप प्रोफाइल पेज यूज कर रहे हैं, इट हार्ड, आपका कॉलम नैरो हो जाएगा. So end of the day what really matters is the presentation of the work. तो आपसे मैं यही कह रही थी कि you have to think about it, कि the way you are presenting your work, if it is visually pleasing. मुझे तुबा का काम भी visually pleasing लगा, मुझे अस्मा का काम जो है उसमें I was very comfortable looking at it. तो मैं आपसे ये कही थी कि प्रेजेंटेशन स्टाइल में फ़र्क होता है. एंड व्हेन वी गो बैक टू एहसन ताहिर's वर्क, वहाँ पे एक ऐसा कॉलम क्रिएट हुआ इन द मिडल. The only thing that I found a bit disturbing वो ये था कि images were touching each other. I would like to see space between one frame and the other. तो एहसन, I would suggest कि आप उन स्पेसेस को थोड़ा सा सेपरेट करके दोबारा अपलोड करते हैं, ठीक है? कि हमने जो नेक्स्ट वीक सबमिट करवाना है असाइनमेंट, वो हमारी रिटन केस स्टडी की है, राइट? If you remember कि हमें ओरिजिनली आज जो असाइनमेंट सबमिट करनी थी वो वही है जो अब आप नेक्स्ट वीक सबमिट करेंगे. You wrote case study papers, didn't you? Yes. तो Yes, ma'am. अब आपने सिर्फ इतना करना है कि केस स्टडीज पेपर्स जो आपने लिखे थे, you know, use the information from those essays to write your copy for case study videos. ठीक है? अब सॉरी टू इंटरप्ट यू, उसके अंदर तो बेसिकली हमने खुद से लिखना है ना स्क्रिप्ट, बिकॉज उसकी तो कोई केस स्टडी वीडियो बनी नहीं है. ऑफ कोर्स नहीं बनी हुई. आपको मैं यही तो बताने की कोशिश कर रही थी कि नाउ दैट यू हैव डन दिस एक्सरसाइज, अब आपको पता है कि व्हाटएवर यू हैड रिटन इन द पेपर, आप अगर उस पूरे पेपर का वीडियो बनाना शुरू कर देंगे तो इट विल टेक अबाउट हाफ एन आवर और आवर टू गो थ्रू द वीडियो, राइट? यस मैम. आपको वो सारी चीज़ें जो पेपर में थी वो नहीं आपको चाहिए. प्रेजेंटली डिफरेंट केस स्टडीज वीडियोस को पूरी क्लास में देखा. लेट मी ट्राई लुकिंग एट डिफरेंट केस स्टडी वीडियोस. अब ये अदनान हाशिम, अदनान आपने क्या चीज़ यूज़ की है? मैम ये सिंपल पीडीएफ है. ये वर्ड की पीडीएफ है? यस मैम. ऑलराइट, अब आप ये देखेंगे फ्रेम 1. अच्छा अदनान, आपको फ्रेम 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी. मैंने आपसे कहा था यहाँ पे यू कैन राइट हियर SC1, SC2, SC3, ठीक है? लेकिन ये देखें, ये अब वर्ड पे इन्होंने किया है, बट डोंट यू सी कि इट लुक्स नीट.
जो मुझे पहले 2 पेजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, जी बस। ये दोनों फ्रेम साइज बिल्कुल एक जैसे हैं। तो फ्रेम साइज एक जैसे हैं एंड ही एक्चुअली डिड जो मैंने आपसे कहा था कि एक फ्रेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जहां खत्म हो जाए, आई सेड गिव सम स्पेस एंड देन डिस्कस द नेक्स्ट सीन। अब इसमें सिर्फ एक चीज है कि व्हेन यू यूज बोल्ड टेक्स्ट, ये फॉन्ट साइज क्या है अदनान? मैम ये उसमें जो पीडीएफ में आ रहा था ये 48 था आई गेस। नहीं, ये इसकी इमेज की बात नहीं कर रही, ये जो नीचे टेक्स्ट है इसका फॉन्ट साइज क्या है? मैम ये जो उस कैटेगरी में 46 है या 48 है, लेकिन ये वर्ड में आई गेस 16 होगा या 18 होगा। हाँ, तो मैं आपसे सिर्फ यही कही थी कि ये इस वक्त काफी बड़ा लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा तो वो लग रहा है, लेकिन थैंकफुली क्योंकि आपने ये जगह छोड़ दी आफ्टर वन टेक्स्ट एंड्स, तो आपने अगले फ्रेम के बीच में स्पेस क्रिएट कर दी, तो दैट इज फाइन। वी डिड नॉट नीड फॉन्ट साइज 16 बिकॉज अभी तक मैं फॉन्ट साइज 14 पढ़ लेती हूँ, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू आर प्रेजेंटिंग इट टू योर क्लाइंट, ठीक है, यू आर प्रेजेंटिंग दिस टू कोका कोला, तो उसके लिए भी यहाँ पे फॉन्ट साइज 12 वुड हैव बीन फाइन, विच मीन्स कि मैं आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर रही, क्योंकि मैं आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है इट इज स्टिल लुकिंग वेरी नीट, और ज़रा बड़े साइज में पढ़ना भी आसान है, राइट? और आपने द गुड पार्ट इज कि यू एक्चुअली डिड जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी व्हेन आई वाज टॉकिंग टू स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। तो बस इसमें सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना था SC1, और SC1 लिख के आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी, फिर उसके नीचे मैंने आपसे कहा था आपने लिखा है दिस एड विल स्टार्ट विद द ओपनिंग फ्रेम बेयरिंग अ टेक्स्ट ऑन फर्स्ट स्क्रीन रीडिंग इंट्रोड्यूसिंग, फाइन। और आपने कहा कि रेड बैकड्रॉप, रेड इज वेरी सूटेबल फॉर कोका कोला बिकॉज आपकी प्रोडक्ट का जो कलर है वो नॉर्मली कोका कोला यूजेस रेड कलर। पेप्सी के कुछ कमर्शियल्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि पेप्सी ऑप्टेड फॉर मरूनिश टिंट इंस्टेड ऑफ रेड, और पेप्सी के जो मॉडल्स हैं पेप्सी कमर्शियल्स में, उसमें भी कुछ जगहों पे आपको नजर आएगा कि मॉडल इज वेयरिंग समथिंग इन मरून टोन, क्योंकि वो प्रोडक्ट के कलर्स के साथ उसको एडवर्टाइजिंग में इन पर्टिकुलर दे ट्राई टू मैच कलर टोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब बेसिकली ये सारी आपकी डिस्क्रिप्शन थी, ओके, तो इसको आप थोड़ा सा और कंसाइज भी कर सकते थे, बट दिस इज फाइन, दिस इज ऑल आई नीडेड। उसके बाद आपका ये है, और आपने वो किया हुआ है जो उस वक्त तूबा कह रही थी कि एवरीथिंग इज रिटन इन वन प्लेस। आपने कहा द वर्ड्स द theory of quantum of happiness will then appear on the next frame with the same music and red background and white text. Also some scientific graphics will appear with the text. The voice will start explaining about the theme of the ad. ये आपने completely जो अहमद हफीज के पार्ट में मैंने कहा था शुरू में कि थोड़ी सी एक डिस्क्रिप्शन दे दें, and this is what you are doing. आपने वॉइस, म्यूजिक एंड डिस्क्रिप्शन को अलग नहीं किया, यू हैव पुट एवरीथिंग इन वन प्लेस। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आई कैन सी what you are describing image wise and what you are saying voice wise and music wise and any other thing जो you are saying कि certain types of graphics start appearing on the screen। तो मैं आपसे ये कही थी कि आपने सब चीज़ें एक ही जगह पे एक्सप्लेन कर दी, विच इज़ ऑल्सो फाइन कि आपने उसको 4 में स्प्लिट करने के बजाय यू हैव पुट एवरीथिंग इन वन प्लेस। अभी तक मुझे रीडिंग में तो उसमें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग वाज नॉट टू डिफिकल्ट, आई कुड अंडरस्टैंड कि व्हाट यू वर ट्राइंग टू से, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि फॉर्मेट वाइज दिस प्रेजेंटेशन लुक्स फाइन। अभी थोड़ी देर पहले जो सुंदर का क्वेश्चन था कि यू वर नॉट श्योर, शी वाजंट श्योर कि हम क्या कह रहे हैं, तो मैं दिस इज व्हाट आई हैड आस्क्ड कि जी आप मुझे इस तरीके से प्रेजेंट कर दें, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि यू गाइस कैन सेपरेट इमेज फ्रॉम व्हाट पीपल आर हियरिंग। यू नो, दो चीज़ें होती हैं इमेज में, यू हैव प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड वन फ्रेम। इमेज एक ही होती है, though there may be a lot of information inside the image. Do you realize that the audio part has 4-5 different elements? आपको आइडिया है कि वो 4-5 elements क्या हैं? Audio has more in it as opposed to
के इमेज में भी यू आर थिंकिंग अबाउट फ्रेमिंग, लाइटिंग, परफॉर्मेंस, ब्लॉकिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन जब इमेज आपके सामने आ जाती है दैट इज जस्ट वन इमेज। जो साउंड वाला पार्ट है इट्स मोर देन वन, आपको उसमें यू हैव वॉइस, you have music, you have ambience, you have sound effects, you also have silence at times. You use silence to exploit or to emphasize a certain situation. ठीक है, तो आपको when you are talking about the audio part there are more things that you need to think about. आपको समझ में आ गया मैं आपसे क्या कह रही हूँ? ठीक है, तो बेसिकली आई लाइक इट। ये जो वर्ड में इन्होंने प्रेजेंटेशन दी, इट्स नीटली प्रेजेंटेड। सिर्फ मैं आपसे ये कहूँगी कि शायद फ्रेम कहने की ज़रूरत नहीं थी, बट इफ़ यू आर कॉलिंग इट फ्रेम, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दिस असाइनमेंट वेल। आप जैसे जैसे आगे मूव कर रहे हैं, जहाँ पे टेक्स्ट ज़्यादा है, राइट, टेक्स्ट ज़्यादा होने की वजह से यू आर नाउ क्लोजर टू फ्रेम 14। आप देख रहे हैं, तो अगर आप इसको फॉन्ट साइज 16 के बजाय 12 या 14 रहने देते तो आपके पास यहाँ पे एक थोड़ी सी नीट स्पेस होती। तो लेकिन दिस इज़ ऑल्सो नीट, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ये नीट नहीं है। इट लुक्स लाइक कि यू हैव वेल प्रेजेंटेड योर वर्क हियर। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड। दिस प्रेजेंटेशन इज़ यूजिंग द बेसिक फॉर्मेट जो मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे इस तरीके से प्रेजेंट कर दें, बिकॉज अंटिल लास्ट क्लास मैनी पीपल डिड नॉट इवन understand how to divide it into visual and audio parts. ठीक है, somebody sent it to me in this form before. किसका है ये? मैम मेरा है। अलेना आपने मुझे भेजा था शायद ये पहले। जी मैम। मैंने आपको गूगल क्लासरूम में सिर्फ इतना कहा था कि यू लुक एट द इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में आई हैड पोस्टेड अहमद हफीज वर्क एज अ सैम्पल। ठीक है, तो और मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि यू परहैप्स डू नॉट नीड टू split it into bullet points. आप ये देख रही हैं बुलेट पॉइंट्स में किया है, बट इफ यू somehow feel कि बुलेट पॉइंट्स आर probably giving a look of different frames, कि आपको यहाँ पे फ्रेम चेंज करना है, कॉन्टेक्स्ट चेंज करना है, यही था। ठीक है, इफ यू डूइंग दिस ओके फाइन, डू दिस। लेकिन बेसिकली जो सिंपलेस्ट चीज मैं जा रही थी, आप फर्स्ट स्टेप कैसे कवर करेंगे? वो उस तरह तो नहीं है जैसे आपने कहा था, मतलब अब जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए, लेकिन आई जस्ट ट्राइड। डिफरेंट पीपल हैव यूज्ड डिफरेंट मेथड, राइट। अभी मुझे लग रहा है कि ये चूंकि मैं ऑनलाइन खोल रही हूँ इस वजह से ये इस तरीके से नजर आ रहा है, बट दिस लुक्स गुड। मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले खोला था अदनान हाशिम वाला, मैंने सिंपली वो मांगा था, ठीक है, लेकिन दिस इज ऑल्सो फाइन। अभी मैं डिस्क्रिप्शंस पढ़ूंगी तो आई वुड हैव अ बेटर आइडिया हाउ यू आर प्रेजेंटिंग डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, एज लॉन्ग एज वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग एंड व्हाट इट इज अबाउट, इट्स फाइन। अब अरसल ने ये काफ़ी लंबी कॉपी है बट इट्स फाइन। अरसल का मैं एक्चुअली स्टोरी बोर्ड देखना चाह रही थी कि हाउ ही इज प्रेजेंटिंग द स्टोरी बोर्ड। ये देखें, Arsal's work is similar to Ahsan Tahir's. Alena, can you try telling me if there is anything problematic here? मैम फ्रेम साइजेस डिफरेंट है। हाँ, फ्रेम साइज चेंज हो रहा है। स्क्रीन जो है वो इट हैज सर्टेन प्रोपोर्शंस, स्क्रीन के प्रोपोर्शंस नहीं चेंज होते, ठीक है। तो एक तो फ्रेम साइज चेंज हो रहा है और एहसन ने ये दोनों जोड़ दी थी इमेजेस, लेकिन इसने अरसल ने इनको जोड़ा नहीं है, राइट। ये देखें, यहाँ आपके फ्रेम साइजेस मुसलसल चेंज हो रहे हैं और कुछ जो हैं वो जुड़े हुए हैं, लाइक एहसन ताहिर हैड डन इट। ये इशू ऑनलाइन ओपन करने में आ रहा है अरसल, आई थिंक कि यू आर प्रोबेबली राइट कि बिकॉज़ मेरा भी सेम इशू आ रहा था मैं, लेकिन मेरी एमएस में बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, हम इसको यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं अभी भी फ्रेम साइज फर्क है, ठीक है। इसी फ्रेम साइज, ये जो आपको साइड पे ब्रायन फिशर के साथ वाइट बॉर्डर लाइन शो हो रही है, ये एग्जैक्टली थी ऐसे उसमें, हाँ, वीडियो में भी ऐसे। बट वो आपकी बात सही है कि मुझे स्पेसिंग करनी है इनके बीच में, मुझे नहीं आइडिया था, सो मैं उसको करके आपको दोबारा से भेज दूंगा। अच्छा, आपसे मैं सजेस्ट ये करूंगी, चूंकि यू आर यूजिंग वर्ड,
तो गो फॉर समथिंग दैट अदनान हाशिम डिड, ठीक है? जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कोक वाला खोला हुआ था ना, हालांकि उसको उसने वर्ड में किया था, इट स्टिल लुक्ड नीट। ठीक है मिस। मिस मेरा भी मुझे बता दें। हसीब, मैंने इतनी देर से जो डिस्कशन की वो इसी वजह से थी कि 4 असाइनमेंट शुड वेल एक्सप्लेन कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि चारों असाइनमेंट्स में देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है? आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह का कॉलम यूज़ किया है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट द फर्स्ट स्टेप इवन इन सोप प्रोडक्शन, टेलीविजन प्रोडक्शन, टीवी प्लेज और फीचर फिल्म प्रोडक्शन। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ना इस किस्म का काम कर रहे हैं। ये काम हम कर लेते हैं, लेकिन ये काम हम इतने अर्ली स्टेज पे, मतलब इट्स फाइन, आई कैन एटलीस्ट सी कि आप मुख्तलिफ जगहों पे जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी कि आपने सीन डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल दी, आपने वॉइस प्रॉब्ली यहाँ डाल दी, साउंड म्यूजिक इफेक्ट यहाँ डाल दिया। आई वुड स्टिल से कि दो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग देयर, जो हम यहाँ पे देख रहे थे ना, तो ये ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट था इन सिचुएशंस जहाँ पे आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता दैट अस्मा हैज यूज्ड, ठीक है? मिस मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए। मिस आपने जिस तरह मेरे ये भी वो देखा स्टोरी बोर्ड, अगर मैं उसमें स्पेसिंग सही प्रॉपर करके दे दूं और इस तरह से इंटायरली उसको अदनान की तरह चेंज ना करूं तो वुड दैट बी ओके? मुझे सिर्फ अदनान वाले में ये लगा कि फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है, यू नो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है। आई वुड लाइक टू सी द इमेज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि टेलीविजन और स्क्रीन पे इमेज जो है इट शुड बी वेरी 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 पावरफुल विजुअल, ठीक है? ऑडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट्स इम्पॉर्टेंट हाउ यू आर डिस्क्राइबिंग इट। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि ये थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम इट आई फील कि इट इज़ वेरी नीटली प्रेजेंटेड, ठीक है? जिन लोगों को मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में नहीं पता, उनसे मैंने सिंपली ये इस्तेमाल करने के लिए कहा था। Somebody asked me in the last class if he or she could use PowerPoint. You know, in PowerPoint, you could use each slide for a frame and for description of that particular frame. तो मैंने last time आप लोगों से कहा था कि it would be fine if you are using PowerPoint. It would be fine if you are using Word. Word में आप ऐसे present करते जैसे अदनान हाशिम ने present किया. So for somebody who does not know the software that Asma has used, and somebody who does not know how to use Photoshop like Tuba has done, तो ये Word and PowerPoint were simplest applications that you could use for presenting your work, क्योंकि आप उसमें एक साइज के frames create कर सकते थे, राइट? तो जिसकी हमारे सामने एग्जाम्पल भी आ गई है कि अदनान हाशिम एक्चुअली डिड। सिंपलेस्ट चीज़ जो मैंने मांगी थी वो ये थी, और अस्मा ऑप्टेड फॉर समथिंग जिसमें 4 फ्रेम्स इकट्ठा नज़र आ गए और उसको सॉफ्टवेयर ने उसके लिए इजी बना दिया टू प्रेजेंट इट नीटली, ठीक है? एंड दिस इज़ ऑल्सो नीट इनफ दैट आई हैड आस्क्ड। अब अगर आपने उसको रिवाइज करके अपलोड करना है तो ये जो आपने व्हाट यू हैव अपलोडेड अर्लियर, उसको डोंट रिमूव इट, जस्ट अपलोड योर 3rd फाइल नेक्स्ट टू इट, ठीक है? ठीक है मिस। वहीं ओके मैम। और मैम ये कब तक करनी है? चूंकि आई वुड लाइक टू मार्क ऑल दी असाइनमेंट्स, तो आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। जी ठीक है, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। इसको जी बताइए। मैम सारा चेंज करना पड़ेगा इसको, मतलब क्या आप कह रही हैं? नहीं, आई थॉट कि somebody was saying कि his assignment looked like Ahsan Tahir's assignment, and he asked me कि if he could change it to something which looks like Adnan Hashim's assignment. तो मैंने उनसे कहा कि okay, you can re-upload without removing the first 2 submissions. The 3rd can be uploaded besides it. ठीक है मैम। बाकी फॉर्मेट्स वैसे एक्सेप्टेबल है ना? अभी आपने मेरी भी खोली थी, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि एक्सेप्टेबल है ना, ये इतनी कि बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाए। कौन सी है आपकी? मैम मेरी ये है, बस मैंने फॉर्मेट का पूछना था, बाकी आप आराम से देख लीजिएगा। अहमद हफीज, मैं देखिए मुझे मैम साउथ नदीम के भी चेक करते हैं। मैंने आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ आई कीप ऑन रिपीटिंग
कि वर्क शुड लुक प्रेजेंटेबल, वर्क शुड लुक नाइस। देखें ये भी फ़र्क है, ये हसीब का फ़र्क है, राइट? फ़र्क है लेकिन नीट इनफ। आई वुड हैव सेड कि हसीब आप इस फ्रेम को बड़ा करते, ठीक है? अच्छा। फॉन्ट साइज इज फाइन, आपने इस वक्त एक पेज पे 3 फ्रेम्स डाले हुए हैं, ऐसे ही है। ये 3 के बजाय 2 रह जाएंगे तो प्रॉबली आपका फ्रेम इतना बड़ा हो जाएगा। फ्रेम वुड बी प्रॉबली 6 टाइम्स ऑफ द फ्रेम दैट वी आर सीइंग ऑन स्क्रीन राइट नाउ। जब ये इससे 6 टाइम्स बड़ा हो जाएगा तो इट विल लुक स्ट्रॉन्गर, इट विल लुक मोर पावरफुल। टेक्स्ट साइज बिल्कुल ठीक है, टेक्स्ट साइज इज परफेक्ट। आई वुड से यहाँ से इसको आप पुल करें एंड मेक इट फुल साइज, ठीक है? फ्रेम को आप सारे चारों साइड से 1 इंच स्पेस छोड़ के मेक योर फ्रेम वेरी पावरफुल। टेक्स्ट साइज बिल्कुल ठीक है। जैसे ही आपका फ्रेम बड़ा हो जाएगा विजुअल इम्पैक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर। अभी आप देखें ना, ये ट्रक छोटा सा नजर आ रहा है, जब मैं इसको 6 टाइम्स बिगर कर दूंगी, if I make it 6 times bigger and I leave the text in the same size, तो आपकी image will be more powerful and stronger. तो मैंने आपसे कहा है कि this work is about your images, it is about powerful images, ठीक है? तो आप इस image को बड़ा कर दें, so image becomes powerful and leave the text as it is right now. ठीक है? आप सबके काम एक दूसरे से बहुत फ़र्क है। मैं आपसे सिर्फ यही कह रही हूँ कि उसकी प्रेजेंटेशन जो है जितनी भी पावरफुल आप कर सकते हैं उसको करें। अच्छा, ये अब अगेन वही एक फॉर्मेट आ गया। मुझे लगता है कि ये सारे फ्रेंड्स हैं, ऐसे ही द फ्रेंड्स आर शेयरिंग द फॉर्मेट। मैम शाउट नदीम की चेक कर देंगी एक बार? ये कॉपी लग रही है मुझे लगता है कि नॉरेस ने अभी स्टोरी बोर्ड नहीं अपलोड किया हुआ। ये खाली है, किसकी फाइल है ये? रुबाब? इज रुबाब हियर? मैम यही थी। अच्छा, उसको बता दीजिएगा कि उसकी स्टोरी बोर्ड वाली फाइल शायद अपलोड नहीं हुई, बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट अ ब्लैंक फाइल। ठीक है, अब ये अच्छा मुजना, यस मैम। फ्रेम्स ठीक लग रहे हैं, सिर्फ ये देखें ये बड़ा है और ये छोटा है थोड़ा सा। मैम दैट्स बिकॉज मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया था अपलोड करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा फ्रेम का साइज हाँ, ऊपर नीचे हो गया। मोस्टली एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा है। कैन यू सी? यस मैम। कैन यू सी कि इस फ्रेम की हाइट ज्यादा है, इस फ्रेम की हाइट कम है, और इसकी विड्थ कम है और इसकी विड्थ ज्यादा है। ओके, तो दिस इज द ओनली थिंग दैट आई हैड सेड कि फ्रेम साइज शुड बी कंसिस्टेंट, ट्राई के फ्रेम्स आर ऑफ द सेम साइज। अच्छा, अब आपने भी यू हैव क्रिएटेड 3 कॉलम्स, आपने 3 कॉलम्स क्रिएट किए हुए ना। एक कॉलम में यू आर सेइंग कि सीन क्या है, ऑडियो क्या है। इन अ वे दिस इज सिमिलर टू व्हाट एहसन ताहिर डिड, in a way it is similar to what many other people have done who have created columns. मैम आपने लाइब्रेरी में जो एक अपलोड किया है वो सिमिलर था, तो आई थिंक एवरीवन फॉलोड दैट फॉर्मेट जो कि हम सबको पता था। मैंने लाइब्रेरी में क्या अपलोड किया हुआ है? मेरा ख्याल है कि मैम आई सॉ समथिंग ऑन गूगल क्लासरूम में जहाँ से मैंने फॉलो किया है। इसको नूरपुर की केस स्टडी थी, उर्दू में थी ऑल्दो, बट उसी को आई गेस सबने फॉलो किया। आई थिंक नूरपुर की केस स्टडी थी। आई वुड लाइक टू लुक एट इट। कैन समबडी टेल मी कि वो कहाँ पे है? ये रहा आपका क्लासरूम। डिड यू सी इट इन आर्काइव्स? बिकॉज लोगों को इन लास्ट क्लास आई गेव डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन क्लास। अब यहाँ पे यहाँ तक आपका कोर्स वर्क और ग्रेडिंग क्राइटेरिया, इसके नीचे इट सेज आर्काइव्स। तो आर्काइव्स जो हैं वो पास्ट आर्काइव्स हैं,
तो आपने जो भी चीज़ देखी ये भी आर्काइव्स है, ये भी आर्काइव्स हैं. So I'm not sure कि what exactly you have seen. Even if you are accessing the archives, you probably will not access work of past students. ठीक है, क्योंकि वो इसी तरह प्राइवेट स्पेसेस में अपलोड हुए होंगे. सो यू कैन प्रोबेबली नॉट एक्सेस वर्क ऑफ पार्ट स्टूडेंट्स. सो आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों ने एग्जैक्टली क्या चीज़ देखी थी जिसको आपने यूज़ किया. मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल हियर कि व्हाट वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास कि अंडरनीथ द फ्रेम राइट द डिस्क्रिप्शन. उसके नीचे लिखें वॉइस ओवर एंड देन से म्यूजिक एंड देन से इफ साउंड इफेक्ट और एनी अदर इफेक्ट एक्सेट्रा. इन्होंने चूंकि सारी चीज़ें एक ही जगह पे डाल दी and it is not a lot of text, I could still understand what he's saying, so I am comfortable with whatever is written here. तो ये हमारी minimum instruction थी. उसके बाद ये जो बाकी चीज़ें हैं ये this is slightly different from what I had said in last class. ये थोड़ा सा advanced stage होता है. Advanced stage, especially in television program making, where people say कि जी ये मेरा एक कॉलम है. If you were writing documentary script, तो आप एक कॉलम में you will put your voices, narration, voice over, and something like that. मिडल में आपने फिर वीडियो डाल दिया, लास्ट में आपने साउंड इफेक्ट्स डाल दिए. तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ये फॉर्मेट्स यूज होते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ठीक है, if you were following the instructions you would end up with something like this or something जो कि आपको asma वाले में नजर आ रहा था, but asma used a software. She's saying the software made it very easy for asma to present her work, और जबकि अदनान हाशिम को ये काम करने में मैनुअली काफ़ी काम करना पड़ा होगा. ठीक है, if you were presenting your work just like this, so it would have been fine. Okay, क्योंकि it tells you कि जी मेरा frame क्या है and what it is about and all information I need is already here. ये भी ठीक है, बस इसमें सिर्फ ये है कि consistency presentation इसके अगर नीचे लिखा होता तो I would enjoy it more. आपसे पहले जिसका मैं काम देख रही थी हसीब का था शायद, उसमें image size was 1/8 of your image size. तो मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि image बड़ी कर दें because powerful images, bigger images leave a stronger impact. और ये image size अच्छा है. ये text आप left and right column के बजाय अगर इसके नीचे लिख देती तो you will have more space for your images. You have divided your space into 3 columns जिसकी वजह से आपका image का size limited है. ये text अगर आप image के नीचे ले जाती तो you could make your image even bigger. ठीक है, और ये नाइकी ये क्या वर्ड में किया आपने जिशान? यस मैम, वर्ड में किया. हाँ, तो आप ये देख रहे हैं कि दिस इज सिमिलर टू असमास बट डन मैनुअली. ठीक है, अब इन्होंने सिर्फ ये किया है कि इन्होंने सीन नंबर को फ्रेम के ऊपर लिखा हुआ है. ऑल राइट, फाइन. इमेज के नीचे लिखना वुड हैव बीन फाइन टू. इस वक्त देखिए मैं टेक्स्ट ऊपर पढ़ती हूँ, फिर मैं इमेज देखती हूँ, फिर मैं टेक्स्ट नीचे पढ़ती हूँ. So if you were writing scene number besides the other text, so I would looking at the image and I will be reading the text. इस वक्त आपने 3 divisions की हुई हैं, first layer, second layer of image and third layer. I am looking at text, image, text. If you were putting all information underneath, I will be looking at image and text. Right now I am looking at text, image, text. You know what I'm saying? Yes, yes मैम. ठीक है, ठीक है, मैं देख रही हूँ टेक्स्ट, इमेज, टेक्स्ट. I would perhaps enjoy more if I was looking at image and text. ठीक है, तो ये this is very similar to asma but done manually. और ये क्या है, this storyboard, look at. ओके, अच्छा, इसमें भी वो ये लग रहा है कि इन्होंने फ्रेम साइज आप देख रहे हैं इसमें
this perhaps look like a film frame size. शायद फिल्म में 35 mm होता है, 70 mm होता है, किसी ज़माने में 16 mm भी हुआ करता था. So ये 35 mm आई एम नॉट श्योर कि ये 35 mm है या उससे ज़्यादा है, लेकिन देख रहे हैं आप ये फ्रेम साइज मुस्तकिल चेंज हो रहा है. तो इट सीम्स के अम्मार प्रोबेबली डिड नॉट अटेंड होल ऑफ लास्ट क्लास, तो उसको ये पता नहीं था कि फ्रेम साइज शुड बी कंसिस्टेंट. वो कहीं बीच में कॉल ड्रॉप हुई और व्हाटएवर वेंट रॉन्ग, समहाउ ही डिड नॉट नो कि फ्रेम शुड बी ऑफ सेम साइज. ठीक है. और अदरवाइज इट सीम्स कि उसने इंफॉर्मेशन सारी डाली हुई है, बिकॉज at places I can see कि he's saying voiceovers is doing this, music is doing this. अब नवाजिश कुछ अपलोड किया है कि नहीं किया? जी मैम किया है अपलोड. तूबा का हमने देख लिया, जहरा का रह गया, जमरा का रह गया, और बस ये खत्म हो गए स्टूडेंट्स. मेरा इसमें नजर नहीं आ रहा. हाँ, अभी कोशिश करते हैं, दोबारा देख लेते हैं आपका, क्योंकि मैंने आप मौजूद नहीं थी तो मैंने इसलिए आपका खोला नहीं था. क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये मिस कर दिया था जब आपने मुझे स्टोरी बोर्ड का बताया था तो मैं नहीं थी. आई डोंट नो, बट मैंने अभी आपकी असाइनमेंट इसीलिए नहीं खोली थी कि यू वर नॉट हियर. अच्छा, अब आप ये देखें कि Zamra also created 3 columns. What I had asked for was this. What I had asked for was something what Asma has done. ठीक है. और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक खोला था जो किसी ने मैनुअली किया हुआ था. जिशान. हाँ, जिशान ने मैनुअली किया हुआ था, अस्मा ने सॉफ्टवेयर के थ्रू किया हुआ था, और अदनान हाशिम ने भी मैनुअली किया. तो मैं आपसे ये कही थी कि ये वो चीज़ें हैं जो मैंने क्लास इंस्ट्रक्शन दी थी, whether manually done or via software, these are the presentations that followed the class instructions. ठीक है. और ये जो है, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, बट आई सेड कि व्हेन यू क्रिएट 3 कॉलम्स यू रिड्यूस स्पेस फॉर योर इमेज. और एडवर्टाइजिंग जो है वो 3 घंटे की फीचर फिल्म नहीं होती. Case study videos and television commercials are hardly 30 seconds to 2.5 or 3 minutes long. They are not 180 minutes long like fiction films or feature films. When you are doing feature film etc., you have lots of stages in production, जिसमें स्क्रिप्ट से आप मूव करते रहेंगे स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन पे, एंड देन यू विल मूव ऑन टू स्टोरी बोर्डिंग एंड अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स जो आप करेंगे. दिस विल कम समवेयर जहाँ पे आप सिंपल स्क्रिप्ट स्टेज से एडवांस कर चुके हैं. थोड़ी देर पहले आई शोड यू टेलीविजन स्क्रिप्ट ऑल्सो. I discussed park scene जिसमें people were doing different kind of exercises, जिसमें उसने कहा कि बच्चे जो हैं वो मछली को या चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं. You could add probably sound effects there. तो वो ज़रा डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क है जिसमें आप 3 कॉलम्स क्रिएट करेंगे तो योर वर्क वुड बिकम ईजियर. आपने ये इस तरह सबमिट कर दिया, परफेक्टली फाइन, बट इंस्ट्रक्शन जो थी वो ये थी, राइट? जिशान, अस्मा और ये अदनान हाशिम ने जो किया वो मतलब एज पर इंस्ट्रक्शन है कि आप इमेज के नीचे लिख दें. तो ये आप लोगों ने जो कॉलम्स क्रिएट किए हैं इसमें भी आपको काफ़ी एफर्ट तो करनी पड़ेगी, पुटिंग योर फ्रेम्स इनसाइड दीज बॉक्सेस. ठीक है. सो आप ये देख सकते हैं कि जो शायद ऑनलाइन की वजह से इट्स लुकिंग के फ्रेम साइजेस कंसिस्टेंट नहीं है. Okay, frame size should not change. Frame size change नहीं होता. This is also good. ये किसका है? ज़हरा. ठीक है? Yes ma'am. को आपने सिर्फ यही किया है, वही टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट किया हुआ है, but still it's fine because I can see from distance. Okay, scene 1 2 3 4 आपने किया हुआ है.
ओके Yes, ma'am. तो अगर आपने ठीक है। सीन 1 2 3 4 ऊपर ना भी लिखा होता इट वुड हैव बीन ओके। आई कैन सी कि ये सारे जो हैं वो फ्रेम साइज इस अगर आप सीन डिस्क्रिप्शन की हेडिंग ना भी देती तो heading wasn't essential because I was looking for description underneath that you could give without giving it the heading of scene description. ये आपने बोल्ड कर दिया, ये आपने प्लेन टेक्स्ट। यस मैम, ये एंड में रह गया था मेरे से। मैंने बाद में जब पीडीएफ भेजी थी बाद में मैंने इसको गौर से देखा था, मैंने कहा चलो ठीक है। चलें कोई बात नहीं, मैं आपसे कही थी कि ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। यस मैम। और चूंकि इमेज के नीचे व्हाट यू हैव रिटन इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन, सो यू डोंट नीड टू गिव द हेडिंग ऑफ सीन डिस्क्रिप्शन। ओके ठीक है, तो मैं आपसे ये कही थी, बट दिस इज परफेक्टली फाइन। ये जस्ट लाइक जिस तरह जिशान ने मैनुअली किया, आपने भी मैनुअली किया, यस मैम, बट दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके, अब ये है, ये मुझे लग रहा है कि मदीहा स्टोरी बोर्ड कहाँ है? आई डोंट सी द स्टोरी। इसी पेज पे मैम नीचे, इसी एक ही डॉक्यूमेंट। अच्छा ये है, आपने भी कॉलम्स क्रिएट कर दिए ना, you created columns and in your columns you are also writing duration वगैरह। it is useful for you to know that this scene lasted 20 seconds and the next scene lasted 3 seconds only, right? ये आपके लिए अच्छा है कि if you were directing or producing or writing this script, you would know कि अच्छा this part would last longer and this part would be smaller। ठीक है, बेसिकली मैम ये स्लाइड्स ही थी ज्यादा, इसमें ऐसा कोई विजुअल्स यूं नहीं थे, बस स्लाइड्स आ रही थी जा रही थी। Why is this frame white? मैम वो थोड़ा वर्ड में किया था, मैंने सुबह किया था बिकॉज मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या दिया आपको। It seems that this scene was not needed. What succeeded as a marketing strategy faded as a PR. बेसिकली जो मैंने इससे पहले लाइक फिल्म में जो किया हुआ था, तो उसमें लाइक अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा, उससे ये होता है कि जब आप एडिटिंग कर रहे होते हो तो पूरा सीक्वेंस पता होता है कि कहाँ पे टेक्स्ट आ रही है, क्या चीज है। What I am saying, this is an image. What is written here is not an image. आपने you dedicated your left column to the images. जब आपका left column contains images, so there should only be images in the left column until text appears as an image. There were case studies जिसमें text was appearing on screen. असमा वाले में we could see both text and image in one frame. ठीक है, तो क्योंकि आपको इसमें नजर आ रहा था text as a very powerful part of the image, मैंने असमा का बंद कर दिया, but her frames showed text as part of the image, कि उसके केस में text and image were together. इसमें था नहीं, अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना तो सिर्फ टेक्स्ट आ रहा था। तो आपने यहाँ पे ये कहना था एक्चुअली, यहाँ पे कि टेक्स्ट अपीयर्स ऑन स्क्रीन। ठीक है, आपने सिर्फ लिखा है टेक्स्ट विद वॉइस ओवर, टेक्स्ट अपीयर्स ऑन स्क्रीन विद वॉइस ओवर। ठीक है, The only thing I would say कि जब आप दो कॉलम्स में डिवाइड करेंगे तो आपकी इमेज वुड बी स्मॉलर। जब आपने दो कॉलम्स नहीं क्रिएट किए, यू कैन सी कि ये द इमेज पार्ट इज मच बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। अदनान हाशिम से मैंने कहा कि गिव मोर स्पेस टू द इमेज एंड मेक टेक्स्ट इवन स्मॉलर, डोंट यूज फॉन्ट साइज 16, यूज फॉन्ट साइज 12 और 13 मैक्सिमम underneath the image, so your image remains the most powerful part of the presentation. सही, ठीक है, विजुअल मीडियम है ना, तो इन विजुअल मीडियम आप उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। जैसे ही you are making 2, 3, 4 columns, you are making your image smaller, you are opting for a smaller image, opt for a bigger and powerful image. ओके मैम, ठीक है मैम, प्लीज मेरी भी फीडबैक दे दें। मेरा भी रहता है मैम, शुमाइला का भी रहता है मैम, सुंदर सानिया। मैम साउथ नदीम का भी कुछ ऐसे थे जिनमें फाइल मौजूद नहीं थी, अपलोड नहीं हुई हुई थी, जिसकी वजह से मैंने उनको बंद कर दिया। शुमाइला, इन तीनों में से कौन सा है स्टोरी बोर्ड?
मैम ये वाला है। अच्छा, you have put 8 frames on a page, आप देख रही हैं? Ma'am, they're not 8 frames, They they're are 4 they frames. are 8 मुझे इस वजह से लिखे because the size of text frame is same as the size of the image frame. ऐसा ही है? Yes ma'am. But if you go back to instructions given in last class, ये आपका वीडियो है जिसमें this video has instructions from the last class, and if you were present for the whole duration in the last class, मैंने specially ये कहा था, I said it, you'll find it in the video, कि underneath the image just leave 1-2 mm space, you know, which is good enough, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ इतनी सी जगह में यहाँ पे ख़त्म कर देना था टेक्स्ट, right? The text which is more relevant to the image. तो I said कि presentation really matters. इस वक्त आपका frame and text size almost similar है, which gives the impression कि you created 8 frames on a page while there are only 4 frames on a page. ठीक है? This is wider column, right वाला. लेफ्ट वाला कॉलम इज नैरोअर. आपको ये नजर भी आ रहा है कि दिस फ्रेम इज बिगर. इन दोनों की हाइट एक जैसी है, बट द फ्रेम ऑन द राइट इज वाइडर एंड द फ्रेम ऑन द लेफ्ट इज नैरोअर. तो इम्पॉर्टेंट ये था कि यू रियलाइज कि फ्रेम साइज इज सेम एंड फ्रेम साइज इज कंसिस्टेंट. तो आपके लेफ्ट कॉलम के फ्रेम साइज एक जैसे हैं, राइट कॉलम के फ्रेम साइज एक जैसे हैं, बट फ्रेम्स इन द लेफ्ट कॉलम आर स्मॉलर देन द फ्रेम्स दैट वी सी इन द राइट कॉलम. ठीक है? उसमें so the work is fine, at least मैं देख सकती हूँ कि you are talking about images and text part etc. Okay, this is still a different example. ये ठीक है सानिया? Is she here? Yes ma'am, I am. हाँ सानिया, देखें ये आपने लेफ्ट लाइन किया टेक्स्ट एंड इमेज जी. राइट साइड पे इमेज के बाहर ना जाती. यू कैन सी के ये थोड़ा सा ज्यादा है. और अगर मैं टेक्स्ट यहीं तक लिख रही होती तो what I would do कि I would make this image even bigger. So if the image was bigger, the text would be within the limits that are set by the image. कि अगर आपका ये फ्रेम बड़ा हो जाता, यहाँ तक हो जाता, तो आपका पूरा टेक्स्ट जो है the text would be under the frame if the frame was bigger. ठीक है? अगर आपका फ्रेम और बड़ा हो जाता तो सिर्फ टेक्स्ट उसके अंदर होता, but this format is fine. I had said SC1, SC2 would be sufficient. आपने scene 1, 2 लिखा हुआ है, scene is also fine, but abbreviation may have worked as well. ठीक है? I don't have a problem with this presentation. सिर्फ ये कि आपका text जो है, it's bleeding out. I'll fix it. Good. ये किसका है जी? सुंदस का. अच्छा, अब सुंदस जो है शी इज मूविंग लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, आप देख रहे हैं. लेकिन लेफ्ट राइट में व्हाट वी नीड टू सी इफ द फ्रेम साइज इज कंसिस्टेंट. डज इट लुक कंसिस्टेंट? I think it does. Okay. If it is consistent, good. Or you have opted for left right frames. Sometimes people do this in storyboarding के they opt for, you know, like आपने ये left पे लिख दिया फिर आपने right पे लिख दिया. People do it at times. ठीक है? This is different from what I had said, but this is fine too. और again आपने frame to frame आपने दिया हुआ है, so that wasn't essential. But what you guys need to see is that now that you have seen the work submitted by yourself and other people in Google Classroom, you have seen everybody's work, right? So you can see that you can compare your presentation style with the presentation style of one of your class fellows, and you can also see that if his or her or my style is better. ये again Saud आपने वही 3 column style use किया है. I already said कि if you're using the landscape format you have more space, but if you're using profile format आपके पास इतनी जगह नहीं होती कि आप उसको 3 columns में divide करें.
और जो मैंने मांगा था that was much simpler and we have seen certain presentations जिसमें presentation style is better. In advertising, presentation style really matters. It matters how you are presenting work to your client. In professional work, it should look very powerful. Powerful means कि आप image को maximum space दे दें, especially if there is something very powerful inside the image. It will communicate better if you have used the image of a bigger size. ठीक है? Some storyboards had images of smaller sizes. तो मैं आपसे कही थी कि image should be powerful and bigger. जी, बताइए. मैम मैं कह रही थी कि अब हमने जो सबमिट करवा दिया अब हम उसको चेंजेस करें या फिर नेक्स्ट असाइनमेंट में इम्प्रूवमेंट करें तो अब क्या करें? I wonder कि आपके पास साउंड डिले के साथ जारी है. That is the reason you are speaking together. तो आप क्या कह रहे थे? जी. मिस उधर ऐसा होता था कि हम जो डायरेक्शन है जो आपने अपनी वीडियो बनानी है उसके रिगार्डिंग उस पर ज्यादा फोकस करवाया जाता था. अभी तक हमें इस चीज का आइडिया नहीं है कि जो हम अपनी वीडियो बनाएंगे या शूट करेंगे उसकी डायरेक्शन और कंटेंट हम अपनी केस स्टडी में से कैसे जनरेट करेंगे. ओके, आपका ये क्वेश्चन है एंड लेट मी टेक द अदर क्वेश्चन एज वेल. मैम मैं अलाइना बोल रही थी. मैं कह रही थी कि अब हमने इस असाइनमेंट में चेंजेस करके दोबारा अपलोड करें या फिर नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए इम्प्रूवमेंट कर लें हम लोग और इसको ऐसे ही रहने दें. All right, Elena, if you want to improve, because somebody asked me earlier if he could upload a new version, so I allowed the student to upload the new version. I said, don't remove the storyboard that you have uploaded earlier, just upload your new version. ठीक है? So some people created storyboards in columns, which are acceptable, but I did not ask के create storyboards in columns. मैंने बहुत एक simple सी चीज़ मांगी थी. I wanted to see a powerful image and I wanted to see description of the image underneath the frame. ठीक है? तो मैं चाह रही थी कि मैं बहुत बड़ी image देखूं. I look at a strong, powerful image and underneath that image I just read what this image is about and what voices would be heard in terms of advertising. When people create columns, it makes it difficult to see image in larger size. ठीक है? Advertising is about very powerful images. क्योंकि advertising concepts, TVCs and case study videos are of short duration, so it is very important that you present them well. Present them as strong images with some small text written underneath. जो उसका ज़ीशान का था उसको I suggested please reduce the font size because what I wanted to see more was the frame. ठीक है? अच्छा, अब क्वेश्चन आ गया. आपने अगर उसको अपडेट करना है तो आप उसको अपडेट कर दें. मैं बस ये कह रही थी कि अगर मुझे फीडबैक मिल जाता ना. I have given everybody feedback right now. No ma'am, on the description, on the content, because I don't know कि मैंने description सही लिखी है या content में मुझे वो क्या ऐड करना चाहिए था. तो अगर मुझे वो भी उस तरह से मिल जाता ना तो फिर I would have improved. See, I have to check work of students in 3 different classrooms. I have to check work of thesis students and I have to check work of PhD students. While I was talking to you, a PhD student was calling me non-stop, so it would be difficult. Sometimes students keep sending me requests. I keep looking at their assignment every now and then. It makes it very difficult for me to check and recheck assignment because I have to check work of other students as well. ठीक है? So it would be difficult for me. I give you feedback on the descriptions and you do the descriptions once more. Now what you have to do, I would suggest that each one of you writes a script for your own case study. Now that you have seen how script is written for different case study videos, you should know that there was information in your case study papers.
which is partly not needed for the video part. Video may you'll be showing only the necessary bits, something that communicates your case study paper as case study video of only 1 to 3 minute duration. If you see the instructions, मैंने आपसे clearly कहा है कि write copy of 1 to 3 minute duration only. आपकी minimum duration should be 1 minute, maximum duration should be 3 minutes. I suggested do not exceed these limits. You should know how to present your work in short time. Advertising is about presenting stories in short time. Sorry, मैम, to cut you out, इसी स्क्रिप्ट का ही पार्ट जो पूछने लगी हूँ, जो कॉपी जिस तरह हमने आपको पहले Asma, please. I will come back to your question. Please don't feel Okay. कि मैंने आपका question नहीं सुना. I was trying to introduce you to this YouTube channel. आप देख रहे हैं ये YouTube channel. इसके नीचे it says School of Media and Mass Communication BNU. ऐसे ही है. I will be posting 2 links of YouTube channels in Google Classroom. I suggest you subscribe to both for now until your course finishes. ठीक है? When you click School of Media and Mass Communication BNU Pakistan, do you see here is a list of videos? And these are some of the case studies done by your senior students. आप देख रहे हैं? What I did, somebody had asked me last time what senior students did. So we have uploaded work of your senior students here. So those students had also written case study papers. For instance, ये है और it's not showing all of them, but I uploaded, I think probably 12 case study videos done by your senior students. ठीक है? 2010 में लॉर्ड्स का मैदान पाकिस्तान क्रिकेट स्पॉट फिक्सिंग की जंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 3 खिलाड़ियों मैम अच्छा बस आमिर, लास्ट क्वेश्चन है. See this is the work of your senior student, or the case study video opens with the problem. ये सिर्फ ये कह रहा है कि in 2010 Pakistan Cricket Board was stuck with spot fixing scandal. ठीक है? उसके बाद this video only shows what cricket board did to improve its image. So these 3 players were banned, and these were the conferences in which cricket board prepared plans for improving its media image or contacted media professionals to prepare soft news like this, and what they did online, what they did on YouTube and other social media channels to improve their image. So you can see what this video is showing in terms of improving image which was injured or which had become bad because of spot fixing scandal. ठीक है? मैम अहमद बात कर रहा हूँ. मैं पूछना चाहूंगा कि असाइनमेंट 3 में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा? जैसे असाइनमेंट 2 में हमें पता चला कि फ्रेम्स वगैरह का और एज अ प्रेजेंटेशन एज अ होल बड़ा मैटर कर रहा है. तो मैम असाइनमेंट 3 के लिए आप क्या कोई प्रो टिप बताएं जो हम उसमें मतलब कि यूज कर सकें अच्छी वीडियो के लिए? Take assignment 3 as an advanced stage of assignment 1 and assignment 2. Had we started assignment 3 directly, if we had made assignment 3 assignment 1, it would be difficult for you to, even know the facts that are needed for making the case study video. Assignment 1 was about writing the case study. ठीक है? And assignment 3 is about extracting your text from assignment 1. जी मैम. ठीक है? You have to use assignment 1 for writing copy of assignment 3.
You cannot use everything which is there in case study paper. आपको चाहिए, you must know what you were doing, why you were doing, where you were doing, and when you were doing. You know, if you are familiar with, in a way, 5 W's of media, तो आप इसमें you are just saying कि in terms of image making, in terms of improving the image, what you are required to do. आप लोगों ने फिर क्या किया? What was your marketing strategy? What were the channels you had selected? What were your creative plans? And what were the achievements through different channels used? तो आपकी जो headings थी, आपकी assignment 1 की, there were certain headings. जी मैम। ठीक है? You just pick up key ideas from those headings. ठीक है? Key ideas उठाएं, basic facts उठाएं. So you have written the copy. जी. मैम जिसने किसी वीडियो जो बनाई है सीनियर की उसका स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है ताकि हम एक दफा देख के आइडिया ले सके। अस्मा किस वीडियो की? अभी जैसे आपने दिखाई है उसकी क्रिकेटर्स वाली फॉर इंस्टेंस दैट वीडियो इट मस्ट हैड अ स्क्रिप्ट ना, तो वो स्क्रिप्ट आपसे पहले प्रूव हुआ होगा, तो वो स्क्रिप्ट अगर हमें उस फॉर्म में मिल जाता कि हमें आइडिया हो जाए कि या आपका मतलब है कि हम बस वो सुन लें और उसी तरह हम। अस्मा आपने असाइनमेंट 2 में यू हैव लुक्ड एट वर्क ऑफ प्रोफेशनल्स। यस मैम। ठीक है, आपने प्रोफेशनल काम देखा, तो यू आर आस्किंग फॉर स्टूडेंट वर्क राइट नाउ। केयरफुली लुक एट असाइनमेंट 2 राइट टुडे। यू हैव सीन कॉपीज जो कि आपके फेलो स्टूडेंट्स ने लिखी। Copies are already part of the videos that are posted in Google Classroom. You have also seen storyboards submitted by all the students. You don't have to see the copy written by a fellow student or a senior student, because what you submitted to me today were professionally written copies for the case study videos. ऐसा नहीं है? आपने मुझे प्रोफेशनली रिटन कॉपीज सबमिट कर दी फॉर द केस स्टडीज वीडियोस। जो प्रोफेशनली रिटन कॉपीज हैं दे आर डेफिनेटली बेटर देन समथिंग व्हिच इज रिटन बाय समबडी एल्स। सी द कॉपी इज ऑलरेडी हियर। ये जो नीचे लिखा हुआ है द कॉपी इज ऑलरेडी हियर। ठीक है, यहाँ पे द कॉपी इज ऑलरेडी हियर एंड द वीडियो प्रपोजल इज ऑल्सो हियर। ठीक है, इसके लिए भी somebody must have written a case study. Case study requires research जो आपने पेपर के फॉर्म में लिखी। अगर आप डायरेक्ट वीडियो प्रपोजल बना रहे होते तब भी आपको रिसर्च करनी पड़ती। राइट नाउ बाय राइटिंग केस स्टडी पेपर्स you have created organized research. Now look at your organized work और उस organized work में से extract information that you can use for creating a case study video. Ma'am, I do get it. Actually, इस particular assignment में हमने reverse किया है। मतलब we had the case study video and we did the copy. और इसके अंदर हमें copy लिखनी है extracting through our जो पूरा हमने case study written form में लिखी हुई है। तो video में बनाना क्या चीज? पहले हम रिवर्स नहीं कर रहे थे, पहले हम सीधे सीधे जा रहे थे। राइट? If you have noted, मैंने असाइनमेंट 2 को असाइनमेंट 3 कर दिया बिकॉज yes, आपके लिए सीधे जाने में आफ्टर कलेक्टिंग योर डेटा एंड राइटिंग योर केस स्टडी पेपर्स यू फाउंड इट डिफिकल्ट टू राइट कॉपी। ठीक है, तो उसकी वजह से आई एंडेड अप इंट्रोड्यूसिंग समथिंग विच वाज केस स्टडी वीडियो एंड ऑल द वीडियोज हैड कॉपी एंड प्रोडक्शंस। ठीक है, आप वीडियो देख रहे थे ना, दे वर ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। केस स्टडी पेपर्स जो थे या केस स्टडी रिसर्च वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस दोज वीडियोस। ठीक है, तो अब मैंने आपसे ये कहा कि आप असाइनमेंट 1 आप लोगों ने की। In assignment 1, you already have collected all the data that you need about your specific brand or what it is, like Madiha के केस में Madiha opted for Shaukat Khanum cancer self-screening campaign, etc. So you already have all the information. I am saying just open your essay in front of you and highlight what
from the essay you can use for creating copy for a case study video, and what from your essay you can use for creating a storyboard of your case study video, and how you will create case study video from your particular case study paper. ठीक है. Step 2 we introduced, so you would know okay, from paper from here, from assignment 1 to assignment 3 what you are supposed to do. If you go through this you would know exactly what you are supposed to do. मैंने आपसे कहा था Shercoke के case में we have both Shercoke case study written in the form of paper, and we have video created as a Shercoke case study video. ठीक है, दोनों चीजें हैं. तो आई सजेस्ट कि स्टूडेंट की कॉपी आपको नहीं चाहिए. एक तो कॉपी इज ऑलरेडी देयर इन द वीडियो. Secondly, it would be better that you write your own copy using information from your own case study. Ma'am, so basically we have to submit the copy. Adnan Hashim. Present. Ehsan Tahir. Lena. Arsal. Sania. Present. Asma. Ma'am. Arsal. जी मिस. मैम आपने मेरी लगा दी है लेना की. Asma. Ma'am. Faisal. Here, ma'am. Haseeb. Yeah, ma'am. Madiha. Yes, ma'am. Ahmed Hafiz. Present, ma'am. Ammar. Kazim. Norez. Present. Zishan. Present. Muzna. Present, ma'am. Rubab. Present, ma'am. Sania. Present. Saud. Shahir. Present, ma'am. Shahir present. Yes, ma'am. शहीर, हमने आपका काम ही नहीं देखा आज. आप देखा हमने आपका काम? नहीं मैम, मेरा आपने प्रेजेंटेशन नहीं ओपन की. Had you uploaded the storyboard? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वैसे तो टाइम खत्म हो गया, but I will try looking at it. All right, ma'am. Sharfa. Shmaila. Present. Sundas. Present. Nawazish. Present, ma'am. Tuba. Yes, ma'am. Zehra and Zamra. Present, ma'am. Present. फिलहाल लगा रही हूँ, but make sure ask everybody to be present. ठीक है? Ma'am, another thing. जी. मैम सिंस हमारे नेक्स्ट वीक मिड्स की सबमिशंस हैं, तो आप इस असाइनमेंट में थोड़ी सी एक्सटेंशन दे दें. किस चीज की सबमिशन है? मैम आईएमसी की, और हमारे मिड्स अभी बाकी हो रहे हैं, मतलब जो कि नेक्स्ट वीक में आपका मिड हुआ है. यस मैम. 3 प्रोजेक्ट्स हैं मैम नेक्स्ट वीक के लिए. एक तो आपका अभी कल सबमिट हो जाएगा. जी मैम. मैम उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का है और आईएमसी का है. ये वेडनेसडे वाले दिन ही ड्यू है. All right, I'll look into it कि मैं अगर उसकी डेट चेंज करूंगी तो I would suggest think about it in terms of storyboarding, case studies की कॉपी. तो आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना उसके लिए, आपको रिसर्च तो करनी नहीं है because everything is there in your case study paper. तो आपने case study paper को खोल के उसमें से you will be extracting information from your case study paper. आपका रिसर्च पार्ट नहीं रिक्वायर्ड है, और इसको यू शुड कंटिन्यू डेवलपिंग ताकि हम इसको किसी फॉर्म में आगे जाके क्रिएट कर सकें. ठीक है? तो आई लुक इनटू इट के इफ आई नीड टू मूव अ बिट फॉरवर्ड, और दैट वुड डिपेंड ऑन हाउ मेनी वीक्स वी आर लेफ्ट विद, बिकॉज सेमेस्टर क्लोजर हैज़ अ डेडलाइन. तो बाय डेडलाइन वी शुड बी कंप्लीटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क. मैं उसको देख लूंगी. इफ देयर इज सम स्पेस तो फिर I will look into changing the date. ठीक है? मैम आपसे रिक्वेस्ट है काफी, आप प्लीज देखिएगा इस मामले में.
all I need to see how many weeks are left for completing this course. ठीक है, तो उसके मुताबिक अगर स्पेस हुई तो I will definitely readjust it. Okay. Thank you, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Allah Hafiz. Thank you, ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am.